شکریہ جی. تو آج جو ہے ہم الشعراء الصعالیق کے بارے میں پڑھیں گے. کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ شعراء الصعالیق کے بارے میں. سب سے پہلے ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ شعراء صعالیق کیا ہوتا ہے. تو شعراء صعلوک کا مطلب بس آپ فقیر کو سمجھو. اس سے پہلے بھی شاید ہم نے کہیں اس کی میننگ آ چکی ہے. صعلوک کا مطلب یہی امرؤ القیس میں پڑھا نا کہ وہ غریبوں فقیروں کے ساتھ. صعلوک کا مطلب بھیک مانگنے والے فقیر لوگ. ٹھیک ہے, یہ اصل ہے صعلوک کی میننگ. لیکن بعد میں ان فقیروں نے ڈاکہ اوکا مارنا شروع کر دیا, چوری کرنا شروع کر دی, چونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا, جس کی وجہ سے ابھی آئے گا کہ اخذت معانی اخرى قطاع الطرق. ٹھیک ہے, یہ ڈاکوؤں کی میننگ میں آنے لگا, چوروں کی میننگ میں آنے لگا. تو اصل میننگ کیا ہے اگر پوچھ لیا بھی جائے تو اصل میننگ, اور یہ کوشچن آ چکا ہے, ٹھیک ہے, تو اصل میننگ فقیر کی ہے, لیکن بعد میں اس کو ڈاکوؤں کے, چوروں کے, قطاع الطرق کے معنی میں یوز کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو صعالیق جو ہے, اس سے پہلے میں ایک سوال کے ساتھ شروعات کرنا چاہوں گا اپنی کلاس کی, اور تھوڑا سا ایک چیز ریکمینڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پریپریشن میں اس کے لیے ہیلپ ہو جائے گی. شعراء صعالیق جو ہیں, میں پوچھوں گا, اشرف الحق آپ بولیں گے شعراء صعالیق کی کس دور کے لوگ ہیں؟ عصر جاہلی, اسلامی, اموی, عباسی, کس دور میں ہیں یہ لوگ؟ بتائیں. یہ موسٹ پروبیبلی عصر جاہلی سے ہیں. عصر جاہلی کے ہیں. بصیر الدین آپ بتاؤ. عصر جاہلی سر. جی جی, عصر جاہلی کے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عصر جاہلی کے ہیں. ان کو عصر جاہلی میں بالکل دور ان کا عصر جاہلی کا ہے, لیکن ان کو الگ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ الگ ہی لوگ تھے, الگ تھلگ لوگ تھے. جو اصل جو ہزارہ تھی, جو اصل ان کا رہنے کی جگہ تھی, شہر میں رہتے, گاؤں میں رہتے, ان کو چھوڑ کے یہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, الگ علاقوں میں بالکل جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے. ایسے لوگ یہ بہت سارے تھے. تو ان لوگوں میں بھی کچھ بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں. چار مشہور طور پہ جو ہیں, چار کون کون سے ہیں آپ کے یہاں سے بھی سوال آتا ہے, اور اسی طریقے سے یہ چار ہی نہیں بلکہ ہم نے کچھ اور لوگوں کو بھی نام رکھ رکھے ہیں, ان کو بھی یاد رکھیں گے. تعبت الشرا, پھر اس کے بعد شنفرا, ٹھیک ہے, اس کے بعد شنفرا. تیسرے نمبر پر عروہ بن الورد, ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پر آئیں گے سلیک بن سلکا, ٹھیک ہے, سلیک بن سلکا. یہ چار تو یاد کریں, پھر اس کے بعد بھی اور بھی کئی کے نام ہیں, تاکہ ایسا آتا ہے کہ لیس من شعراء صعالیق, کون ہے جو شعراء صعالیق میں سے نہیں ہے, تو ایسا پوچھ لیا جاتا ہے. یا کبھی آتا ہے کہ من ہوا من الشعراء صعالیق, کون شعراء صعالیق میں سے ہے. اور ایک بات اور بولوں, میں بالکل ایزی کوشچن پوچھے گئے ہیں ابھی تک. شعراء صعالیق میں نے بتایا کہ جیسے صعلوک کے میننگ پوچھ لی, کبھی لیس من الشعراء صعالیق پوچھ لیا, کبھی من ہوا من الشعراء صعالیق پوچھ لیا. ٹھیک ہے, بہت ایزی کوشچن ابھی تک پوچھے گئے ہیں. ایون جو نیا پیٹرن NTA کا آیا ہے, یہاں پر بھی شعراء صعالیق میں کوئی ڈیفیکلٹ کوشچن نہیں پوچھا گیا ہے. سمپل سا, تعبت الشرا کے بارے میں بہت آسان سا, شنفرا کے بارے میں بہت آسان سا. ابھی تک یہاں پر جو ایگزامینرز ہیں, ممتحن ہیں, انہوں نے ڈیٹیل میں جانے کی یہاں پر کوشش نہیں کی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, چونکہ یہ عصر جاہلی کے ہیں, تو ہم نے معلقات والے جو 10 لوگ ہیں جن کو ہم نے پڑھا تھا, 10 لوگ وہ, اور 3 یا 4 لوگ یہ, 3 یا 4 لوگ یہ, جو بھی 4 نام میں نے لکھے, ان لوگوں کی آپ تاریخ المیلاد اور تاریخ الوفات کا ایک پیج بنا لینا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ڈیفیکلٹ کوشچن تب آ جاتا ہے جب یہ پوچھ لیتے ہیں کہ رتب شعراء یا رتب ہاؤلا, ٹھیک ہے, جو بھی مذکورین ہیں ان کو مذکور کیجئے ان کی تاریخ پیدائش کے حساب سے. موسٹلی وفات کے حساب سے آئے گا, کیونکہ تاریخ پیدائش تو ان کی پتہ بھی نہیں ہوتی, کسی کی بھی بڑی مشکل سے پتہ ہوتی ہے. تو تاریخی وفات کے حساب سے ان کو مرتب کیجئے, ایسا آتا ہے. ٹھیک ہے, اور موسٹلی ہم ان کی تاریخی وفات بھی جانتے ہیں. تو اگر صرف معلقات والوں کا پوچھ لیا جائے تب تو بچوں کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس میں ڈال دیں ایک تعبت الشرا کو بیچ میں ڈال دیں, شنفرا کو بیچ میں ڈال دیں, عروہ بن ورد کو بیچ میں ڈال دیں, سلیک بن سلکا کو بیچ میں ڈال دیں, تو بچوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کیا, میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 10 معلقات والے بندے, 10 جو معلقات والے بندے ہیں, جو معلقات العشر میں جو آتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی عبید بن ابرس, عاشا, نابغہ, ذبیانی کو ملا کے 4 ان لوگوں کو ملا کے آپ ایک پیج پہ 14 لائن کا ان کا تاریخ میلاد اور یہ مکان المیلاد وہ بھی جمع کر لینا, ان کو ایک جگہ پہ کر لینا. ٹھیک ہے, تو یہ کافی فائدہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آ رہی بات سمجھ میں؟ عاقف جی سر آ رہی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں صعلوک, جو کہ آپ کے صعلوک اس کا مفرد ہے. یطلق علی جماعت من العرب فی عصر ما قبل الاسلام, جاہلیت کے زمانے میں
ایسی جماعت پر ان کا اطلاق ہوتا تھا عاشو واطلقوا حرکتهم فی الجزیرۃ العربیہ، جو لوگ جزیرت عربیہ میں رہتے تھے بالکل اپنے آپ کو آزادانہ مانتے تھے، اپنے قبائل سے الگ ہو کر. کیوں الگ ہوتے تھے؟ سعالیق کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، کیوں جا کر رہنے لگتے تھے یہ. ومعظم افراد هذه الجماعه من الشعراء المجیدین، اور اس جماعت مطلب یہ جو الگ تھلگ رہنے لگے تھے جزیرت عربیہ میں، یعنی عام شہریوں سے ہٹ کے، گاؤں میں جہاں لوگ رہتے ہیں جہاں پر لوگوں کی بستیاں ہیں وہاں سے ہٹ کے، یہ روڈ جہاں سے نکلتے ہیں، راستے جہاں سے نکلتے ہیں وہاں پر چلے جاتے تھے، اور اس کے مقاصد وغیرہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. تو ان کے جو اکثر افراد ہوا کرتے تھے من الشعراء المجیدین، اکثر میں سے اچھی شاعری کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر جو ہیں اچھی شاعری کیا کرتے تھے. وقصائدهم تعد من عیون الشعر العربی، اور ان کے قصائد جو ہیں کافی عمدہ سمجھے جاتے ہیں. اور جو ہماری سلیبس میں ہے 3، آپ دیکھیں گے تینوں کے مشہور کچھ نہ کچھ قصیدے ہیں تینوں کے، چاہے تابت الشرا کی بات کریں، چاہے آپ شنفرا کی بات کریں، چاہے عربہ بن ورد کی بات کریں، تینوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے ان کے قصیدے ہیں. اور آخر میں جو میں خلاصہ کرتا ہوں اس میں بھی آپ کو پورا کا پورا ان کا خلاصہ آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. حدد الدکتور شوقی ضیف فی کتاب العصر الجاہلی، شوقی ضیف نے عصر جاہلی جو کتاب ہے ان کی، اس میں سالوک کا معنی کیا بیان کیا کہ لغت میں اصل معنی کیا ہے کہ بأنہ الفقیر، اصل میں یہ اس فقیر کے معنی میں ہوتا ہے الذی لا یملک المال، جس کے پاس ایک تو مال نہیں ہوتا، پہلی شرط کیا ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، الذی یساعدہ علی العیش، یعنی جس سے اپنی زندگی گزار سکے، ایسا مال اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. وتحمل آباء الحیات، اور اسی طریقے سے زندگی کے جو بھی بوجھ ہیں ان کو اٹھا سکے، اس کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے. مؤکدن، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ جو ہے اس کا حقیقی معنی تو فقیر تھا، لیکن بعد میں جا کے اس کے دوسرے معنی مفاہیم آنے لگے. چنانچہ اخذت معانی اخرى كقطاع الطرق، چنانچہ یہ لوگ چونکہ یہ کام بھی کرتے تھے، یہی سعلوق لوگ، یہ فقیر لوگ آخر میں جا کے کیا کرتے تھے، لوٹ پاٹ کا بھی کام کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کو قطاع الطرق بھی کہا جانے لگا. اس لفظ کی میننگ میں ڈاکو یا چور کے معنی میں بھی آنے لگا. الذین یقومون بعملیات السلب والنہب، جو لوٹ پاٹ چوری کچاری کا بھی کام کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے. تو آئی بات سمجھ میں، سعالیق کا معنی سمجھ میں آ گیا. کلاس کے بعد بھی بہت سارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سعالیق کیا ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے. تھے عصر جاہلی کے ہی لوگ، لیکن عام بستیوں سے ہٹ کے، جہاں پہ امر القیس رہتے تھے، بازاروں میں اپنی شاعری کرتے تھے، یہ وہاں سے ہٹ کے، نابغہ زبیانی سے ہٹ کے، جو عام شعراء رہتے تھے، عام لوگوں کی جہاں بستیاں تھیں، ان بستیوں سے ہٹ کے یہ اپنے جنگلات میں چلے گئے تھے، یہ الگ رہنے لگے تھے، جہاں پر چوری کچاری فقیر لوگ تھے. اور کچھ کے نوبل مقصد بھی تھے، مطلب اچھے مقصد بھی تھے، وہ بھی دیکھیں گے عربہ بن ورد کو کہ ان کا مقصد کیا تھا. تو ان سعالیق نے کیا کیا، تو سمجھ میں آ گیا سعالیق کا معنی. جی شیخ، جی بالکل. شہر الوسواس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں ہینڈ ریز کر دیا کریں جب میں پوچھا کروں، بیٹر ہوگا وہ جو لائک والا کرتے ہیں. امتحان السعالیق غزو القبائل بقصد الاخذ من الاغنیاء وعطاء المنبوذین والفقراء، چنانچہ ان سعالیق لوگوں نے، یعنی فقیر لوگوں نے، زیادہ ان کا اپنا مقصد نہیں ہوتا تھا کہ اپنے لیے لوٹ خسوٹ کر رہے ہیں، چوری کچاری اپنے لیے کر رہے ہیں، نا. امتحان السعالیق غزو القبائل بقصد الاخذ، انہوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا چوری کا. کیوں؟ قبائل پر حملہ کرنا اور ان سے مال کھینچنا تھوڑا بہت، تاکہ ان سے لے کر یہ مالدار لوگ ہیں اور اسی طریقے سے جو غریب ہیں، فقراء ہیں، جن کا کوئی ریکھ دیکھ نہیں کر رہا، جن کے قبیلوں نے ان کو نکال دیا ہے کسی وجہ سے، وہ غلاموں کے بیٹے تھے، ان کے قبیلے والوں نے ان کو بھگا دیا، یعنی لونڈیوں کے بیٹے تھے، جیسے کہ انترا بن شداد کے بارے میں ہم پورا پڑھ رہے تھے. لونڈیوں کے بیٹوں کو یہ نکال بھی دیتے تھے، ابھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، بھگا دیتے تھے. تو جن کا کوئی نہیں ہے ان کا سہارا بن سکے. چنانچہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو ہم ان مالداروں سے لوٹ کے، ان کے قافلوں پر حملہ کر کے ہم جو ہے اپنے ان بھائیوں کو کھلائیں گے. تو مقصد بڑا شریف تھا، مقصد کافی عظیم تھا. اور یہاں پر دیکھیں وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا تقسیم السعالیق إِلَى ثَلَاثِ فِئَاتٍ، چنانچہ ان سعالیق کو 3 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں، 3 ٹکڑوں میں بانٹ سکتے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ فئۃ الخلاء الشذاذ، یعنی وہ لوگ جن کو الگ کر دیا گیا، ان کے قبائل نے الگ تھلگ کر دیا. خلاء جن سے الگ تھلگ کر دیا، شذاذ مانے یہ بھی الگ تھلگ کر دیا. فئۃ الخلاء والشذاذ. اور یاد کریں کہ اس طریقے کا بھی کوئی سوال بن سکتا ہے، ابھی تک تو نہیں آیا ہے، کہ سعالیق کی 3 قسمیں ہیں جن میں سے کون نہیں ہے. تو ایک یہ بن جائے گی، دوسری یہ بن جائے گی،
اور تیسری یہ بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو کیوں وہم الذین خلعتہم قبائلہم بسبب اعمالہم, کیوں ان کے قبیلوں نے اپنے سے الگ کر دیا؟ حقیقت میں ان کے قبیلے والوں نے کہا تم جاؤ. ہوتا ہے نا, خاندان سے نکال دیتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, باپ کہتا ہے گھر سے نکال دوں گا, ٹھیک ہے, تو گھر سے نکال دیا, خاندان سے نکال دیا. پہلے خاندان کی چلتی تھی, اب تو خاندان کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے, اب تو ایک چھوٹے سے گھر کا تصور آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے بھی گھر سے نکال دیا. چلو, التی لا تتوافق مع آراف القبائل, تو کہتے تھے یار ہمارے قبیلے کا یہ چلن ہی نہیں ہے, ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہی نہیں ہے, تم عجیب عجیب چیزیں کر رہے ہو, جس کی وجہ سے خاندان والوں نے ان کو نکال دیا کرتے تھے. الذین یمتمون الیہا, جیسے کون کون ہیں ان میں سے؟ حاجز الاسدی ہیں, قیس الحدادیہ ہیں, براز بن قیس الکنانی ہیں. تو ہمارے بندوں میں سے جو مشہور بندے ہیں ابھی تک کوئی نہیں آیا, یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے, جیسے بیڈ ہیبٹس ہیں, غلط کام کر رہے ہو, پڑھائی نہیں کر رہے ہو, اور بھی بہت کچھ آپ کو پتا ہے, آپ کے آس پاس بھی یہ چیزیں دیکھتے رہے ہوگے, جو کچھ لچے لفنگے کچھ نوجوان اس طریقے کے غلط کام کرنے لگتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں. دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ وفیت ابناء الحبشیات السود, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کالی کلوٹی حبشی لونڈیوں کے بیٹے ہوا کرتے تھے. کون ہوا کرتے تھے؟ جو کہ کالی کلوٹی حبشی لونڈیوں کے بیٹے ہوا کرتے تھے. ممن نبذہم آباؤہم, جن کو ان کے باپوں نے ان کو پھینک دیا. اب یہ کنسیپٹ آپ سمجھ چکے ہوں گے, کیونکہ انطرا بن شداد کو ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے تھے. وہ مانتے ہی نہیں تھے اپنا بیٹا ہے, لونڈیوں کے بیٹے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا مانا, یہ لوگ نہیں مانتے تھے. بڑے کم لوگ ہوتے تھے اپنا بیٹا مانتے تھے لونڈیوں سے پیدا ہونے والے بچے کو. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو بھگا دیتے تھے. نبذہم آباؤہم, ان کے باپوں نے ان کو بھگا دیا. ولم یلحقوہم بانسابہم, اور ان کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. جیسے ان میں سے سلیک بن سلکہ مشہور ہے, میں نام لیا تھا, تعبت شرہ, شنفرہ, یہ تینوں مشہور ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن ہم ان دونوں کو پڑھیں گے, تعبت شرہ کو اور شنفرہ کو پڑھیں گے. کس کو پڑھیں گے؟ تعبت شرہ کو اور شنفرہ کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون لوگ ہیں؟ وفیۃ احترفت الثعلقۃ احترافا, تیسری وہ قسم ہے جنہوں نے اس چوری کو, اس ڈاکہ کرنے کو اپنا پیشہ بنایا. ہوتا ہے کچھ لوگ, وحولتها الى ما يفوق الفروسیہ, اور انہوں نے اس کو ایسا اپنا پروفیشن بنا لیا کہ بہادری سے بھی زیادہ وہ اس کو اپنے دل سے قریب کر لیا, کہ بہادری میں ہم بہادری کا مظاہرہ کریں گے جنگوں میں جا کے, اس سے بھی زیادہ اس کو اچھا ماننے لگے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعہ من خلال الاعمال العجابیہ, بہت زیادہ مثبت اعمال کی انجام دہی وہ کرتے تھے. کون کون سے؟ عربہ بن ورد. ابھی عربہ بن ورد کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو عربہ بن ورد کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ بھائی صاحب کا مسئلہ یہ تھا جس کی وجہ سے ان کو امیر الصعاليق بھی کہا جاتا ہے, عروۃ الصعاليق بھی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے غریبوں کا, ٹھیک ہے, مسیحا ان کو مانا جاتا ہے. لوگ مسیحا مانتے بھی تھے, ابھی آئے گا کہ اذا اصابت الناس السنی شدیدہ, ٹھیک ہے, قاموا علی بیتہ, ٹھیک ہے, جب لوگوں کو کوئی قحط پڑتی, وہ مجبوری کا شکار ہوتے, پریشانی میں ہوتے, ان کے گھر آ کے ڈیرا ڈال لیا کرتے تھے کہ عربہ بن ورد ہماری مدد کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ انہوں نے اس چوری کچاری کو, یعنی ان کے ذہن میں تھا یار مالدار لوگ یہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے, مالدار اللہ نے ان کو نوازا ہے, یہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے, تو میں کروں گا, ان سے چھین چھین کے میں ان غریبوں کی مدد کروں گا. تو یہ کام کرتے تھے عربہ بن ورد, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کے دل میں بڑی عزت آ جاتی ہے یار, بہت عزت آتی ہے, اور سب سے اچھے یہ مانے بھی جاتے ہیں. امیر الصعاليق ان کو مانا جاتا ہے. چنانچہ یہاں پر دیکھیں مشہور جو صعاليق ہیں, جو چور ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تعبت شرہ, نمبر 2 شنفرہ, نمبر 3 عروہ بن ورد. انہی تینوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے. چوتھے پر سلیک بن سلکہ, شہزاد الضبی, ابو خراش الحذلی, حارث بن ظالم المری, توبہ بن الحمیر. ٹھیک ہے, توبہ بن الحمیر. تو اتنے نام یاد کریں, باقی اور بھی بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایسا کوشچن آ چکا ہے کہ لیس من الشعراء الصعاليق. کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں یہاں پر. جی کوئی کوشچن ہے؟ جی چلیے چلتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں, اگر آپ کو ترتیب یاد کرنا ہو, پہلے آپ یاد کر لیں شنفرہ کو, دوسرا یاد کر لیں تعبت شرہ کو. دیکھیں میں بات ہو چکی ہے, یہ پرانے لوگ ہیں, ان کی وفات کے تعلق سے بڑا اختلاف ہوتا ہے. تیسرا کیا ہے آپ کا؟ عربہ بن ورد ہیں, عربہ بن ورد ہیں. اب میں صرف وفات بتاؤں گا, پیدائش کے بارے میں تو بھول ہی جاؤ آپ, ترتیب یہ ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر شاید سلیک بن سلکہ آئیں گے. چوتھے نمبر پر کون آئیں گے آپ کے؟ سلیک بن
सलका आएंगे, मैं उनको भी लिख दूंगा, ठीक है। कौन आएंगे? सुलैक बिन सलका, हालांकि इनको पढ़ेंगे नहीं हम। तो शनफरा की जो वफात है वो बताते हैं कि कब हुई है? 525 में। ताबत शर्रा की जो वफात है वो कब हुई है? 535 में। हालांकि यहीं पर लिख लो कि इनमें 530 का भी जिक्र है और 540 का भी जिक्र है, ठीक है। शनफरा को भी कत्ल किया गया, ताबत शर्रा को भी कत्ल किया गया। फिर बताया गया कि ताबत शर्रा को भी कत्ल किया गया था, लेकिन इनकी लाश जो मिली थी वो मिली थी 607 में। लाश जो मिली थी इनकी 607 में मिली थी। उर्वा बिन वर्द का क्या आता है कि उर्वा बिन वर्द की वफात कब हुई? 596 में। सुलैक बिन सल्फका की वफात के बारे में क्या आता है कि इनकी वफात आपकी 605 में हुई। कब हुई इनकी वफात? 605 में। तो इन चारों का अच्छे से लिख लेना। अगर आप इसी को मिलाकर देखें तो 525 में इनकी वफात, 535 में इनकी वफात, ठीक है। तो ये दोनों गोया कि इमरुल कैस से पहले के हुए नहीं हुए? बताएं, शनफरा और ताबता शर्रा इमरुल कैस से पहले के हुए नहीं हुए? फिर उर्वा बिन वर्द जो हैं ये आपके काफी लोगों के बाद के हुए, क्योंकि 596 में तो कम ही लोग पहुंच पाते हैं। 584 में जो है आपका आमिर बिन कुलसूम की वफात हो गई। 569 में तरफा बिन अब्द की वफात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हारिस बिन हल्लिजा की शायद काफी यही 570 के आसपास ही आप देखेंगे, ठीक है, वहां भी इनकी वफात हो गई। लेकिन हाँ, ज़ुहैर बिन नबी सलमा इनके बाद में चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अंतरा बिन शद्दाद बिन के बाद में चले जाते हैं। लबीद बिन रबिया तो सबसे आखिर वाले हैं, सबसे लास्ट में इनकी वफात हुई है, ठीक है। सुलैक बिन सलका जो है 605 में। तो बात समझ में आई? शुरुआत में मैंने क्या बात बताने की कोशिश की थी? इन तमाम की तारीख वफात को एक साथ याद करने की कोशिश करना। मुअल्लकात वाले जी 573 570, ठीक है। तो इन तमाम लोगों को यानी 10 मुअल्लकात वाले और ये चारों भाई साहब, ये चारों इन 14 लोगों की वफात को एक साथ नजर में रख के याद करना। क्योंकि अगर जो इस क्वेश्चन की मैंने बात की कि अगर आ गया कि रत्ब शुआराल मज़कूरीन अदना हस्ब तवारीख वफातिहिम, नीचे दिए गए लोगों को, शुआरा को उनकी तारीख वफात के हिसाब से मुरत्तब कीजिए। अगर उन्होंने बीच में उर्वा को डाल दिया, ताबत शर्रा को डाल दिया, आपकी हवा टैट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इनको साथ में रख के पहले से ही तरतीब बना के भी लिख सकते हो, तरतीब पहले से ही बना के लिख सकते हो कि पहले वो आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा। आ रही है बात समझ में? चुनांचे देखें, जहां से हम सोर्स उठाते हैं उसमें सही बात क्या है? शनफरा पहले हैं, तो शनफरा ताबता शर्रा के मामू है। कौन है? शनफरा ताबता शर्रा के मामू है। ये हकीकत है, सही है थोड़ा सा। लेकिन कहीं कहीं पे अगर आप शनफरा की जिंदगी में पढ़ोगे तो वहां पे आएगा कि ताबता शर्रा शनफरा के मामू, उल्टा सीधा। और कहीं पर आया कोई किसी का मामू नहीं है, बल्कि उस्ताद थे, शनफरा उस्ताद से ताबत शर्रा के, ठीक है। तो इसमें आप छोड़ दें, हम बस इतना मान सकते हैं क्योंकि शायद क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि शनफरा जो है पहले हैं, इस हिसाब से मामू बड़े होते हैं, तो शनफरा ताबत शर्रा के मामू है। वरना दोनों तरीके के अकवाल यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों ही तरीके के अकवाल मौजूद हैं। लेकिन राजे हम यही समझेंगे कि शनफरा जो है ताबत शर्रा के मामू है, ठीक है। ये हो गया। तो ताबत शर्रा की जो पैदाइश, जो इनकी वफात हुई है, कब हुई है? 535 में, ठीक है, 535 में। और ये भांजे हैं किसके? शनफरा के। ये भांजे हैं किसके? शनफरा के। क्लियर है? तो 535 इसको याद करेंगे, लेकिन कहीं पर इसको 530 भी दिया हुआ है, कहीं पर 540 भी दिया हुआ है। अगर 540 मान भी लो तो हम क्या देखेंगे? उर्वा बिन वर्द की हमें पैदाइश भी पता है, उर्वा बिन वर्द की हमें क्या पैदाइश भी पता है। उनकी पैदाइश क्या है? इनका अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पता है। 540 में इनकी पैदाइश है और 607 में इनकी वफात है। 596 में इनकी वफात है, 596 में इनकी वफात है। तो इनका दोनों पता है, 540 में पैदाइश और 596 में वफात। तो उर्वा बिन वर्द जो है सबसे अच्छे थे इनमें से अखलाक के हिसाब से। अल्लाह, अच्छे लोग ज्यादा जीते नहीं है, अच्छे लोग ज्यादा जीते नहीं है। तो इसी से आप ध्यान रख लें कि उर्वा बिन वर्द ज्यादा नहीं जिए, मुश्किल से आप देख सकते हैं 54 साल या 56 साल जिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया ताबत शर्रा। फिर उसके बाद एक और चीज देखें, इन तीनों को जो पढ़ेंगे हम, ताबत शर्रा को पढ़ेंगे, शनफरा को पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम उर्वा बिन वर्द को पढ़ेंगे। इन सब के बारे में है शायरुन व फारिसुन व सालूकुन, क्योंकि शायर तीनों थे, घुड़सवार जंगों में शरीक होने वाले तीनों थे, सालूक भी तीनों थे, और कहीं पर अद्दाउन भी आएगा। लेकिन अद्दाउन जो है मतलब बहुत तेज दौड़ने वाले, अद्दाउन ये आपका उर्वा बिन वर्द पे उतना नहीं आता है। लेकिन अद्दाउन जो है ये आपका ताबत शर्रा और शनफरा पे ज्यादा आता है, क्योंकि बहुत तेज दौड़ने वाले थे दोनों ही बंदे। और ये मैं बताऊंगा कि दोनों के बारे में है कि दोनों बहुत तेज दौड़ने वाले थे, लेकिन दोनों के तेज दौड़ने की अलग अलग मिसालें हैं, अलग अलग एग्जाम्पल, यानी अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको याद करना होगा। इसी तरीके से जिन तीनों को हम पढ़ेंगे, इन तीनों का कुछ ना कुछ मशहूर कसीदा है। इनका मशहूर कसीदा मुफज्जलियात में मुफज्जल ज़ब्बी ने जिक्र किया है। और फिर उसके बाद शनफरी का तो लामियतुल अरब है ही,
फिर उसके बाद उर्वा बिन वर्द का भी अस्माई ने शायद जिक्र किया है, ठीक है, या फिर अबू तम्माम ने, अभी हम देखेंगे किसने उनका तस्करा किया है। तो तीनों के मशहूर मशहूर कसीदे हैं जिनकी डिटेल में जाके पढ़ा जा सकता है, और कुछ थोड़ी बहुत डिटेल इंशाल्लाह हम उसको जानने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ताबत शर्रा को आप देखें, और शायद एमए के या सीईटी के या इसी बार के क्वेश्चन में आया तअब्बता शर्रा, तअब्बता शर्रा, ये शर्रन क्या है या कौन सी तरकीब है? तो ये कौन सी तरकीब है? तअब्बता का मतलब उसने बगल में रख लिया, तअब्बता मतलब उसने बगल में रख लिया, शर्रन माने बुराई को। तो कैसे नाम पड़ा वो अभी देखेंगे, नाम ये नहीं है, नाम कुछ और है। तो तअब्बता शर्रा, उसने बगल में रख लिया, तो ये तरकीब इस्नादी है, तरकीब इजाफी नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपकी तरकीब इस्नादी है। यहाँ पर यह है कि तअब्बता शर्रा, उसने छुपा लिया, बगल में रख लिया बुराई को, उसने बगल में रख लिया बुराई को। आ रही बात समझ में? तो ये आपके असर जाहिली के अरबी शायर हैं, हुआ इब्न उख्त शनफरी, ये शनफरी के भांजे हैं, शनफरा के, मेरी जुबान पे शनफरी चढ़ा हुआ है, ये शनफरा के भांजे हैं, ठीक है। कौन है? शनफरा के भांजे हैं, वो शनफरा जो कि वो भी शायर और सालूक हैं। व अहदु शुअरा अस्सालिक फिल असर जाहिली व मिन अगरबतिल अरब सूद, चुनांचे ये अरब के काले कलूटे लोगों में से हैं। इससे पहले हमने अंतरा बिन शद्दाद के बारे में पढ़ा, वो भी हबशी माँ के बेटे थे। यहाँ पर ताबत शर्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद शायद हम कहीं ना कहीं देखेंगे, अभी ताबत शर्रा के बारे में रहने दें, आगे आएगा तो हम उसका जिक्र कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली इबारत किसके बारे में? इससे पहले हमने अंतरा बिन शद्दाद के बारे में पढ़ी, क्योंकि वो भी एक हबशी लौंडी के बेटे थे, और इनके बारे में भी इस तरीके का है। ताबत शर्रा के बारे में भी ये बात कही गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, इनका नाम क्या है? साबित, साबित। अब एक और चीज याद रखें, दोनों मामा भांजे, दोनों मामा भांजे। कौन दोनों मामा भांजे? शनफरा और ताबत शर्रा, शनफरा और ताबत शर्रा। शनफरा भी इनका लक़ब है, ताबत शर्रा भी इनका लक़ब है। देखेंगे क्यों, किसका क्यों पढ़ा, अभी डिटेल में आएगा। लेकिन दोनों का नाम क्या है? साबित, दोनों का ही नाम साबित है, ये बात अपने जहन में बसा लेना, दोनों का ही नाम साबित है। लेकिन ताबत शर्रा का साबित बिन जाबिर, क्योंकि ये जाबिर के बेटे हैं, इनकी बाप का नाम, दोनों के बाप तो यकसा नहीं हो जाएंगे, एक ही नहीं हो जाएंगे, नाम तो एक हो सकते हैं। तो दोनों का नाम क्या है? साबित है। लेकिन ताबत शर्रा क्या है? साबित बिन जाबिर। जबकि शनफरा क्या है? साबित बिन अल अवास, साबित बिन अल अवास। औस पढ़ते हैं लेकिन अल अवास हकीकत में सही और दुरुस्त है, साबित बिन अल अवास, साबित बिन अल अवास। तो दोनों का नाम साबित है, इसको भी आप अपने जहन में रखेंगे। साबित बिन जाबिर बिन सुफियान, अबू जुहैर कुन्नियत है अल फहमी, अबू जुहैर अल फहमी। अबू जुहैर साबित बिन जाबिर बिन सुफियान शाइरुन अद्दाउन, चुनांचे शायर हैं, बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। मिन फुत्ताकिल अरब फिल जाहिलिया, चुनांचे जाहिलियत में खूब खूरेज लोगों में से हैं। कान मिन अहल तहामा, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तहामा के। ये जगह बताई, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये तहामा से है। किसकी बात चल रही है? ताबत शर्रा की। ये कहाँ से है? तहामा से, ठीक है। ताबत शर्रा कहाँ से है? तहामा से। इसी तरीके से आपका शनफरी कहाँ से आते हैं? शनफरा, शनफरा आपके आते हैं यमन से। इसी तरीके से उर्वा बिन वर्द आपके कहाँ से आते हैं? तो उर्वा बिन वर्द आपके आते हैं नजद से। ये थोड़ा सा बना लेना, ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ताबत शर्रा तहामा से आते हैं, शनफरा यमन से आते हैं, उर्वा बिन वर्द आपके नजद से आते हैं। नजद से ही आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा आते हैं, नजद से ही आपके खनसा आएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। नजद से ही आपके अंतरा बिन शद्दाद आते हैं, ठीक है। तो उर्वा बिन वर्द, तो आप देखें ताबत शर्रा तहामा से आते हैं, शनफरा यमन से आते हैं, उर्वा बिन वर्द आपके नजद से आते हैं, ठीक है। तो ये जगह की बात हमने कर ली। तो ये कहाँ से हैं? तहामा से ताल्लुक रखते हैं। नशा यतीमन, यतीमी की हालत में जिंदगी गुजारी, क्योंकि इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वालिद का इंतकाल हुआ, और मैं उसका आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेज बना लीजिएगा किनके बापों का, वालिदैन का, जो वालिद का इंतकाल या वालिदैन का इंतकाल, मोस्टली वालिद का इंतकाल हुआ है जहां पर, और वो यतीमी की हालत में जिंदगी गुजारी है उनकी। इससे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, किसके वालिद का इंतकाल हुआ? लबीद बिन रबिया के वालिद का इंतकाल हुआ। तरफा बिन अल-अब्द के वालिद का इंतकाल हुआ। यहाँ पर हम ताबत शर्रा के पढ़ रहे हैं, बल्कि मुझे तो कुछ और के लिए नोट बनवाना है। नोट किस लिए बनवाना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ किस लिए मुझे नोट बनवाना है। नोट इसलिए बनवाना है कि वालिद का इंतकाल हुआ तो कब हुआ। जैसे हाफिज इब्राहिम के बाप का इंतकाल हुआ जब उनकी उम्र 4 साल की थी, ठीक है। इसी तरीके से नवाब सिद्दीक हसन खां के बाप का इंतकाल हुआ जबकि उनकी उम्र 6 साल की थी। इसी तरीके से महमूद सामी अल बारूदी के बाप का इंतकाल हुआ जबकि उनकी उम्र 7 साल की
थी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी के अब्बू का इंतकाल हुआ, जबकि उनकी उम्र कितनी थी, 17 साल की थी। इसी तरीके से फजल खैराबादी के अब्बू का इंतकाल हुआ, उनकी उम्र कितनी थी, 28 साल की थी। तो इस तरीके के जो सिमिलरिटीज हैं और भी कई हैं, अभी जल्दी में मैंने कई पढ़े हैं, तो इनको इकट्ठा कराना मेरा मकसद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक पेज आप जो है अपनी नोटबुक में, अलग वाली नोटबुक में ऐसा बनाइएगा कि जहां पर, या फिर ये नोट अगर आप पीछे खाली वाला निकालते हो, अगर ये जो नोट मेरे निकलवाते हो, अगर पीछे बैक में खाली वाला ब्लैंक वाला निकलवाते हो, तो वहीं पर भी बहुत सारे नोट बना सकते हो, अलग से नोटबुक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, एक पेज ऐसा बना लीजिएगा जहां पर आप लिखोगे कि पेरेंट्स का इंतकाल और इसी तरीके से कितनी उम्र में हुआ। जैसे अब्दुर्रहमान मुनीफ वगैरह में वहां पर बहुत जल्दी दोनों का, गाजी अल कुसैबी के वहां पर वालिदैन का या अब्बू अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद काजी उमर काजी अल बलकनूती के अब्बू अम्मी दोनों का इंतकाल हो गया, ठीक है। तो उनको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाला कर लेना आप। तो फतज़व्वजत उम्मुहु अबा कबीर अल हुज़ली, ये याद करना। चुनांचे इनकी अम्मी ने, जब शौहर का, असली शौहर, ठीक है, शौहर का इंतकाल हो गया, जो कि ताबत शर्रा के अब्बू थे, वो कौन हुए होंगे, जाबिर होंगे, लाजमी बात है, क्योंकि जाबिर, ठीक है। जब उनके बाप का इंतकाल हो गया तो उनकी अम्मी ने एक दूसरी शादी कर ली। किससे शादी कर ली, अबू कबीर अल हुज़ली से, अल्लज़ी लम युहिब ताबत शर्रा, जो ताबत शर्रा को पसंद नहीं करते थे। वहावल तखल्लुस मिन्हु, और उनसे उन्होंने बचने की कोशिश की, कसीरन दूना जदवा, ठीक है, यानी नाकाम कोशिश की, दूना जदवा नाकाम कोशिश की उससे बचने की। अब थोड़ी सी सिमिलरिटी कहो या सिमिलरिटी का उल्टा कहो, हमने क्या देखा ताबत शर्रा की जिंदगी में, ताबत शर्रा की जिंदगी में उनकी सौतेली माँ उनको परेशान कर रही थी, और यहाँ पर सौतेला बाप इनको परेशान करेगा ताबत शर्रा को। इसको, ताबत शर्रा को सौतेला बाप इनको परेशान करेगा। बिम्मा अग़ज़ब ताबत शर्रा, जिसकी वजह से ताबत शर्रा को गुस्सा आ गया, मेरा बाप ही मेरे पीछे पड़ा हुआ, मेरी जानलेवा है, अभी किससे आएंगे, वाक़या आएगा। वजअलहु दाइमल ग़ज़वी अला हुज़ैल, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा हुज़ैल को छोड़ूंगा नहीं, यानी अपने बाप की नफरत की वजह से, बाप गंदा था, बाप उसको मारना चाहता था, बाप उसको पसंद नहीं करता था, सौतेला बाप था ना, तो उसने बाप के खानदान के हमले की ठान ली, हमेशा हुज़ैल पर हमला करते रहे, हमेशा हुज़ैल पर। और इसी को देखेंगे भी, अभी यहाँ भी जो वाली जो इबारत मैंने पूरा बोल्ड करके कह सकते हैं लिखा है, कानत मुअज़्ज़मु इग़ाराती ही, इनके जो अक्सर हमले हुआ करते थे वो किस पर हुआ करते थे, कबीले हुज़ैल के बनी साहिला पर एक, ठीक है, और इसी तरीके से कबीले कनाना के बनी नफासा पर, इसको याद कर लेना, ठीक है। इनके जो अक्सर हमले हुआ करते थे, और क्यों हुआ करते थे उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि बाप गंदा था, बाप अच्छा सलूक नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बाप के खानदान से दुश्मनी हो गई थी, जिसकी वजह से बाप के खानदान से और सौतेला बाप था, ठीक है। चुनांचे ये आपका किससे ताल्लुक रखते हैं, कबीले फहम से ताल्लुक रखते हैं। हमने पढ़ लिया ताबत शर्रा लक़ब है साबित बिन जाबिर, कौन से, कबीले फहम से, मिन अहले तहामा से ताल्लुक रखते हैं। अभी मैंने जब जगह का बताया तो तीनों का बता दिया, क्या बताया, शनफरा जो है यमन से ताल्लुक रखते हैं, आपके ताबत शर्रा तहामा से ताल्लुक रखते हैं, उनवा बिन वर्द नजद से ताल्लुक रखते हैं। अब तीनों का यहाँ पर तीनों के कबीले भी देख लो। तो ताबत शर्रा का जो कबीला है वो कबीला है फहम, जिसकी वजह से हम इनको फहमी भी कहेंगे, फहमी याद करके ऐसे याद कर लेना, ताबत शर्रा अल फहमी। फिर उसके बाद शनफरा को, शनफरा किससे ताल्लुक रखते थे, कबीले अज़द से, उनको कबीले अज़दी भी आप लिखोगे, कबीले अज़दी भी लिखोगे, यानी अज़दी निस्बत करके लिखोगे। फिर उसके बाद उर्बा बिन वर्द जो हैं आपके कबीले अब्स से ताल्लुक रखते थे, जिसको हम कहते भी हैं उर्बा बिन वर्द अल अब्सी। और मैं हमेशा कहता हूं कबीलों को याद करने में अलग से मत याद करो, बल्कि आप उसका नाम, उस बंदे का नाम या लक़ब जो भी है उसके कबीले के साथ याद कर लो। जैसे ताबत शर्रा अल फहमी, ताबत शर्रा अल फहमी, कबीला याद करना ही नहीं पड़ेगा। शनफरा अल अज़दी, शनफरा अल अज़दी, उर्बा बिन वर्द अल अब्सी, अल अख्तल अल तग़लबी, ठीक है, आमिर बिन कुलसूम अल तग़लबी, ठीक है। इसी तरीके से ज़ुहैर बिन अबी सलमा अल गतफानी अल मुज़नी, ऐसे तरीके से जो कबाइल हैं उनको कबाइल को निस्बत के साथ उनके नाम में जोड़ दिया करो, ठीक है। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जुबान पे रट भी जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन वो नाम हमारी जुबान में होता है। जैसे आप पूछो, कभी मुझसे पूछो, मैं सो के उठूं या कहीं पे कहीं भी हूं, आप पूछो उर्वा बिन वर्द का कबीला क्या है, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं भूल जाऊंगा। लेकिन जब मैं उसका नाम देखूंगा कि मैंने ऐसे याद किया है कि उर्वा बिन वर्द अल अब्सी, उर्वा बिन वर्द अल अब्सी, तो मुझे आ जाएगा याद, ठीक है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। क्लियर है? तो आप जो है कबीले को मिला के याद कर लेना।
تو वरिसा ताब्बत शर्रा लौनहुल अस्वद मिन उम्मिहिल हुर्रा, ऊपर पढ़ा ना काले कलूटे लोगों में से था। तो ये काला कलूटापन इनको कहां से मिला था? इनको इनकी आजाद माँ उमैमा करके नाम इनका हुआ करता था, शायद मैंने लिखा नहीं, उमैमा करके इनकी माँ का नाम हुआ करता था। लेकिन उन उमैमा के बारे में इख्तिलाफ है, किसी ने कहा था आजाद थी और किसी ने कहा कि आजाद नहीं थी बल्कि वो लौंडी ही थी। दोनों अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आजादी वाला कौल मौजूद है। ठीक है, तो दोनों ही अक़वाल मौजूद है। किसी ने कहा कि इनकी माँ लौंडी थी और किसी ने कहा इनकी माँ आजाद थी। कौन होती थी इनकी माँ? उख्तुश शनफरी, शनफरा की बहन। क्या नाम था? उमैमा। क्या नाम था? उमैमा। जबकि अंतरा बिन शद्दाद की माँ का क्या नाम था? जुबैबा। क्या नाम था? जुबैबा। तो ये उमैमा जुबैबा, ये इस तरीके के तस्गीर वाली चल रहा है इनके यहाँ पे। ठीक है, अब देखें, उश्तुहिरा तअब्बत शर्रा बिसुरअत अदबिही, बहुत तेज रनिंग के लिए मशहूर हैं। मैंने बताया तेज रनिंग के लिए सिर्फ ये भाई साहब अकेले नहीं हैं, बल्कि शनफरा भी काफी तेज दौड़ा करते थे। दोनों ही बहुत तेज दौड़ा करते थे, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, यानी उनकी तेज दौड़ने की बातों को बताने के लिए अलग बातों का जिक्र किया गया है और इनकी तेज दौड़ने को बताने के लिए अलग बातों का तस्करा किया गया है। जैसे आप कह लो कि वो इंसान बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन आप दोनों के टैलेंट में अलग अलग बात बताओगे कि इस वजह से हमने उसको टैलेंटेड माना। ऐसी कुछ मिसालें हमने देखी, लेकिन इसको टैलेंटेड इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हमने देखी। तो दोनों दौड़ने वाले हैं, ये इसलिए समझा रहा हूं कि आप फंस ना जाओ किसको कहां जोड़ना है। दोनों तेज दौड़ने में मशहूर हैं, बस फर्क क्या है? दोनों की एग्जाम्पल्स अलग दी गई हैं, दोनों की मिसालें अलग दी गई हैं, जिसको हमें अपने जहन में रखना है। तो ताबत शर्रा ये भी काफी तेज दौड़ने वाले थे, चुनांचे अपने पैदल चलकर ये हमला किया करते थे, यानी कि घोड़े पे चढ़ के जब किसी पे हमला करेंगे तो घोड़े पे चढ़ के, बल्कि क्योंकि खूब तेज दौड़ लेते थे तो पैदल चढ़ के ये जाते थे और हमला किया करते थे। दून अन यस्ततिया अहदुन इदराकहु, कोई उनको पकड़ नहीं सकता था, कोई उनको पकड़ नहीं सकता था। वल्लिहाक बिही, और कोई उनको पकड़ और उनसे मिल नहीं सकता था। वकानत लहुल मक़दिरतु अला मुलाहक़तिद दिबा, और इनको ताकत होती थी, यानी इतना तेज दौड़ सकते थे, अगर सामने से हिरन गुजर के जाए तो उसको पकड़ सकते थे दौड़कर। हम पकड़ सकते हैं? नहीं, हमें तो कुत्ते भगाना पड़ते हैं, हम कुत्ते लेकर जाते हैं। वश्तियाद, और उसका शिकार कर लेते थे, उसको खा लेते थे। और अभी आएगा उसका जुमला, इस तरीके का और जुमला। वश्तुहिरा बिक़ुव्वति समइही, इसी तरीके से इनकी कुव्वत सिमात भी काफी तेज थी, सिर्फ दौड़ते तेज नहीं थे, यानी इनके पांव भी काम अच्छे करते थे और आंखें कान भी अच्छे काम करते थे। फकान यस्मउ वतअल खैल मिन मकानिन बईद, अगर जो घोड़े की टप टिप की आवाज होती है, घोड़ा अगर दूर से भी आ रहा है तो घोड़ों की आवाज को ये दूर से सुन लिया करते थे। घोड़े की आवाज को ये भाई साहब दूर से ही सुन लिया करते थे। आ रही बात समझ में? तो पांव भी अच्छे काम करते थे, कान भी अच्छा काम करता था। लेकिन इनको ताबत शर्रा का लक़ब क्यों मिला? तीन अक़वाल यहाँ पर मौजूद है, तीनों को जरा देखने की कोशिश करिएगा क्यों इनको ताबत शर्रा का लक़ब मिला। तो इनको कान रआ कबशन कबीरन फी सहरा, एक कौल ये है कि इन्होंने एक बड़ा मेंढा किसी सहरा में देखा, फहतमलहु तहता इब्तिही, चुनांचे उसको बगल में छुपा कर लाने लगे। आप समझोगे यार ये बगल में छुपा के मतलब बगल में दगा पे, माना आपके बकरी है, कोई बकरी का बच्चा बगल में रख के लेके आने लगो। फजाला यबूल अलैहि, तो वो मेंढा जो है इन पर पेशाब करने लगा, पूरे रास्ते पेशाब करता रहा। फलम्मा करुबा मिनल हई, जब ये कबीले से करीब हुए, सकुला अलैहिल कब्शु, तो इनको बुरा लगने लगा, यार ये क्या पेशाब भी कर दी इन्होंने, ठीक है, पानी मेरे ऊपर आ गया। फलम युकिलहु, तो उसको झेल ना सके, फरमा भी, तो उसको फेंक दिया। फैदा हुवल गौल, तो वो क्या बन गया? भूत बन गया। तो वो क्या बन गया? भूत बन गया। फकाल लहू कौमुहु, तो उसकी कौम ने कहा, मा तअब्बत या साबित, ऐ साबित तुमने बगल में ये क्या छुपा रखा था? फकाला भूत, तो क्या कहा? भूत छुपा रखा था। कालू लक़द तअब्बत शर्रा, तुमने बुराई को छुपाया, तूने बुराई को छुपाया, तो जिसकी वजह से इनको तअब्बत शर्रा कहा गया। तअब्बत शर्रा, लक़द तअब्बत शर्रा, यकीनन तुमने बुराई को छुपाया। तो एक बात क्या हुई, वो वाला वाक़या, यानी मेढा लेकर आ रहे थे, उसने पेशाब कर दी, वो भूत बन गया, ठीक है। एक कौल तो ये है। बाकी एक बात और याद रखें, ऐसा कोई पूछा जा सकता है कि भूतों के मुताल्लिक इनकी जिंदगी में काफी उल्टी सीधी बातें बयान की गई हैं, यानी काफी किस्से वगैरह को घड़ा गया है। उख्तुलिका अखबार कसीरा, ठीक है, अनहु अन सिलातिही बिलगौल, ठीक है, किस तरीके से इनका ताल्लुक था, काफी कहानियों को गढ़ा गया है, उसमें कोई कहानी इस तरीके की नहीं लेके आए हैं, लेकिन ऐसा जुमला आप याद रखना। तो एक कहानी तो ये हो गई, यानी मेढा लेकर आ गए थे, पेशाब कर दी, भूत बन गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, एक बार इनकी माँ ने कहा, कालत लहू उम्मुहु कुल्लु इख्वती का यातीनी बिशैइन इदा राह गयू का,
तुम्हारे सारे भाई जब बाहर जाते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तुम अकेले नवाब साहब कुछ लेकर बाहर से नहीं आते। फकाल लहा साथी का लैला, आज लाऊंगा अम्मी इंशाल्लाह रात में जब पहुंचूंगा तुम्हारे पास बेशैन कुछ तो लाऊंगा। वह मजा फसादा अफाई कसीरा, जब गया तो बहुत सारे सांपों का शिकार कर लिया इसने, बहुत सारे सांपों का शिकार कर लिया। मिन अकबर मा कदिर अलई, यानी बड़े बड़े जितने ज्यादा हो सकते थे उतने, और खूब बड़े बड़े इन्होंने सांपों का शिकार कर लिया। फलम्मा रहा अता बिहिन्ना फी जुराबिन मुतअब्बितन, फिर जब घर वापस आया तो उनको एक बोरे में, कह सकता हूँ जुराब, जुराब तो आप कहोगे ये मोजे में कहां से लेके आ सकता है, तो मैं बोरे में कह रहा हूं, मैं बोरे में कट्टे में भर के उनको लाया, सांपों को अपने बगल में छुपाया हुआ कट्टा रखा हुआ था। फअलकाहु बैन यदैहा, तो उन सांपों को कट्टे के जरिए अपने माँ के सामने डाल दिया। तो जब माँ ने खोला तसईना फी बैतिहा, तो वो दौड़ने लगे, तसईना वो सांप अफाई तसईना वो दौड़ने लगे। फवसबत, इनकी माँ कूद पड़ी। वखरजत फकाल लहा निसाउल हई, और निकल गई तो घर की औरतों ने कहा क्या हुआ, ये साबित क्या आज लेकर आया है तुम्हारे घर में, ये साबित आज तुम्हारे घर में क्या लेकर आया है। तो इसने कहा फकाला अतानी बिफाइन फी जुराब, ये कट्टा भर के सांप लेके आया है हमारे पास, बोरा भर के। अतानी बिफाइन फी जुराब, कट्टा भर के, बोरा भर के ये सांप लेकर आया है। फकुलना कैफा हमलहा, कैसे लेकर आ गया ये, तो काला ताब्बतहा, ये बगल में लेकर आ गया है। फकुलना लक़द ताब्बत शर्रन फलज़िमहु, तो औरतों ने कहा ताब्बत शर्रा, इसने बुराई को छुपाया तो इनका नाम ताब्बत शर्रा पड़ गया। तो एक किस्सा मेढा लेकर आया, मेढा मतलब बकरी कह लो, बकरी का कुछ भी, मेढा कहेंगे हम उसे, कब्शन। दूसरा सांपों वाला किस्सा, माँ ने कहा था तुम कुछ नहीं लाते बाहर से, मिठाई उठाई, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, लुक्किबा भी ताब्बत शर्रा, इनको ताब्बत शर्रा इसलिए कहा गया क्योंकि लिअन्नहु काना कुल्लमा खरज लिल गज़वी, जब ये हमले के लिए निकलते थे, वज़अ सैफहु तहता इब्तिही, तो अपनी बगल में तलवार को छुपा कर जाते थे, रख लेते थे। तो इनकी माँ कहती थी छुपा ली बुराई, हाँ जब मतलब हम कोई गलत में जाते हैं ना, मोटरसाइकिल से तुम जा रहा है, अच्छा निकल जा तू, ठीक है निकल जा, तो इस तरीके से वो, ठीक है, छुपा ली बुराई, छुपा ली, जा मैं समझ रही हूँ कहाँ जा रहा है तू, ठीक है। तो जब भी हमला करने जाते थे इस तरीके से। तो ताब्बत शर्रा के सिलसिले में 3 अक़वाल हैं, एक मेढे वाला, कब्श वाला, कब्श, दूसरा अफाई कसीरा, अफाई सांप वाला, मेढे वाला, सांप वाला, और तीसरा सैफ वाला, स्वर्ण यानी तलवार वाला, ठीक है, तीसरा तलवार वाला। आ रही बात समझ में, फंस रही भेजे में। तो कोई मुख्तसर सा ऐसे ही कोई बता दे थोड़ा सा। अब्दुल्ला मुगल आप बताओ बच्चे, थोड़ा सा रिपीट कर दो इसको। जी सर 3 वाकयात थे। पहला वाकया ये है कि उसने जा रहा था बाहर, तो वहां से सांप मेरे लिए है कुछ लाया नहीं, माँ ने पूछा मेरे लिए लाया नहीं, तो वो सांप लेके आ गया था। तो दूसरा वो दुम्बा दबा के ले आया था अपने। ये 3 वाकया थे सर। दुम्बा, हाँ लफ्ज दे दिया आपने मुझे, दुम्बा। और तीसरा, तीसरा कहाँ चले गए? तीसरा ये होता था कि जब भी हमले के लिए निकलता था तलवार छुपा के निकलता था। माँ कहती समझ रही हूँ कहाँ जा रहा है तू, मैं अच्छा समझ रही हूँ मैं। काला आमिर बिन अबी अमर शैबानी, चुनांचे इनके दौड़ने के बारे में ही है, दौड़ने के बारे में। और दौड़ने के बारे में जो जुमला मैंने बताया था फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, दौड़ने में 2 बंदे मशहूर थे, ये मामा भांजे, शनफरा मामू थे, ताबत शर्रा भांजे थे, ठीक है। तो दोनों ही दौड़ने में तेज थे, लेकिन दौड़ने की अलग अलग मिसालें हैं। जैसे मैं अब्दुल्ला मुगल को भी टैलेंटेड कहूंगा, अब्दुल्ला लश्कर को भी मैं टैलेंटेड कहूंगा, लेकिन मिसालें अलग अलग दूंगा। क्यों अब्दुल्ला टैलेंटेड है, क्यों अब्दुल्ला लश्कर टैलेंटेड है, मैं असल बात बताऊंगा, अलग बात बताऊंगा। तो ऐसे ही दौड़ने में दोनों तेज थे, लेकिन दोनों की बातें अलग अलग हैं। जैसे इनके बारे में ये जुमला ऑलरेडी शायद एग्जाम में आ चुका है, ये वाला यहां तक आप देखें, ठीक है, इतना भी कि इन्ना ताब्बत शर्रा जो है काना आदा, वो ज्यादा तेज दौड़ने वाले थे, ठीक है, ठीक है। जी रिजलैने, ऐसे इंसान से जिसके पास 2 पांव हों, 2 पिंडलियां हों, 2 आंखें हों। मतलब किसी भी सही सालिम इंसान से जिसके पास 2 पांव भी हों, 2 पिंडलियां भी हों, 2 आंखें भी हों, ठीक है, अंधा ना हो और लंगड़ा ना हो, किसी भी सही सालिम इंसान से सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले इंसान थे ये, समझ रहे हैं। तो ये बात बताएगी। एक जुमला ये आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ये वाली इबारत आपकी, तो यही इबारत याद करना है आपको। दूसरी इबारत क्या है, दूसरी इबारत ये भी एग्जाम में आ चुकी है, वकाना इजा जा लम तकुम लहू काइमा, जब इनको भूख लगती थी तो कोई चीज अब उनको नहीं रोकती थी। फकाना यंजुरु इला ज़बा, चुनांचे ये हिरन को जाता हुआ देखते, हिरनों का लश्कर जा रहा होता था। फयंतकी अला नजरिही, फयंतकी नजरुहु अला असमनिहा, उल्टा हो गया ये,
अला नजरिही, ठीक है, फयंतकी नजरहू अला असमनिहा, तो अपनी नजर को डाल लेता था उनमें जो सबसे मोटी होती थी, सबसे मोटी वाली, मतलब हिरणों का लश्कर जा रहा है, उनमें सबसे जो हिरणों का जत्था जा रहा है, उनका गिरोह जा रहा है, उनमें सबसे मोटी वाली पे नजर डालता, इसको पकड़ना है अब बेचारी को, ठीक है। सुम्मा यजरी खल्फहा, फिर उसके बाद उसके पीछे दौड़ने लगता, फला यफूतुहु, तो हिरन की क्या मजाल थी अब की वो अंतरा बिन शद्दाद ये ताबत शर्रा को पछाड़ दे, ठीक है, हिरन की क्या मजाल की वो ताबत शर्रा को पछाड़ दे, हत्ता याखुदहु, उसको पकड़ता था, उसको जिबा करता था अपनी तलवार से, फिर उसके बाद उसको भूनता था और खा जाता था। व यकादु ला यरा लिशिद्दति सुरअतिही, और एक और जुमला, मतलब इतनी तेज दौड़ता था कि दिखता भी नहीं था, व यकादु ला युरा लिशिद्दति सुरअतिही, लिशिद्दति सुरअतिही, ऐसा होता था दिख भी नहीं रहा है, गोली बन गया, हवा बन गया, हम बोलते हैं ना कभी भाग रहा है, गोली बन गया, हवा की रफ्तार से दौड़ना, अलग अलग उर्दू में अल्फाज आपको मिल जाएंगे, तो वही तो इनके दौड़ने के ताल्लुक से पहला जुमला ये याद करें कि सही सालिम इंसानों में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जो कि आदा जी रिजलैनी वजी साकैनी वजी आइनैनी, दूसरा ये हिरणों के पीछे हिरन की क्या मजाल थी, और तीसरा एक और ऊपर हमने देखा था कि इनको कोई पकड़ नहीं पाता था, ऊपर पढ़ा ना, फकाना ला अहदुन यस्ततिया इदराकहु वल्लिहाक बिही, कोई इनको पकड़ नहीं सकता था, तीसरा वो जुमला कहा था। चौथा जुमला यह है कि इतनी तेज दौड़ते थे दिखते भी नहीं थे। चार बातें हो गई दौड़ने के बारे में, तो इसको उर्दू में थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप लोग, उर्दू, कश्मीरी, बंगाली, आसामी, जो भी आपकी जुबान होगी। फिर उसके बाद अभी जो है इनके सौतेले बाप की बात चल रही थी, वही नमा तज़व्वज अबू कबीर उम्मे ताबत शर्रा, जब सौतेले बाप से इनकी शादी हो गई, उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लम यकुनिल अखीर मुवाफिकन अला ज़ालिक, तो ताबत शर्रा को पसंद नहीं था कि मेरी माँ इस बंदे से शादी करे, ताबत शर्रा ही नहीं पसंद करते थे। फकान यतज़ावर अबा कबीर कुल्लमा दखला बैता उम्मिही, चुनांचे वो अच्छा नहीं समझते थे जब भी अबू कबीर उनके घर में आते थे। फहीनमा कबीरा ताबत शर्रा बदा अबू कबीर बिल खौफ मिनहु, चुनांचे अभी तो छोटे थे, छोटे पने में ही इनको पसंद नहीं था, यार ये मेरा बाप बन रहा है, अजीब इंसान ये मेरा बाप बन रहा है, सौतेला बाप, मेरी माँ का हस्बैंड बन रहा है। तो जब ताबत शर्रा बड़े हो गए तो अबू कबीर हुजली इनसे डरने लगे। फश्तका ज़ालिका लि उम्मिही, तो इनकी माँ ने शिकायत भी की, ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझे बुरा समझता है, सौतेले बाप को बुरा समझते थे। फकालत लहू उक्तुलू, तो उनकी माँ ने कहा कत्ल कर दो, निपटा दो इसे। देखें कितना बुरा यार, अजीब सा है, माँ कह रही है कत्ल कर दो, कौन कह रही है? माँ कह रही है कत्ल कर दो। वफी अहदिल अय्याम, चुनांचे उसने मारने का इरादा भी कर लिया। अबू कबीर ताबत शर्रा के साथ एक हमले में चले गए। वफी अहदिल अय्याम इस्तहब अबू कबीर ताबत शर्रा फिल गज़वी, रास्ते में दोनों का अचानक क्या हुआ, वकाला अबू कबीर लिताबत शर्रा, अबू कबीर ने ताबत शर्रा, अबू कबीर बाप है, सौतेला बाप है, और उन्होंने अपने बेटे ताबत शर्रा से कहा, इन्नी जायउन फहल तस्ततीउ जल्बा बाज़ तामिली मिनन नार लती हुनाक, ए बेटा रास्ते में देखो जहां वो आग जल रही ना, हो सकता है वहां पर कुछ लोग होंगे या कुछ मिल जाएगा, वहां से मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना ले आओ, मुझे भूख लग रही है, तुम कुछ खाना लेकर आ जाओ। कहा अच्छा बाबा ठीक है मैं जाता हूँ। ताबत शर्रा कह रहे बाबा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद जाने लगा, लेकिन अबू कबीर ने क्या किया था, ताबत शर्रा को भेज दिया, लेकिन अबू कबीर ने वहां पर चोरों को छुपा रखा था जो इनको मारेंगे, ठीक है। अन्ना हुनाका लुसूसन इत्तफक माहुम अबू कबीर लियक्तुलू, अबू कबीर ने उनसे बात कर रखी थी मेरा बेटा आएगा उसको निपटा देना ताबत शर्रा को, और ये बात किसको पता नहीं थी, ये बात नहीं जानता था ताबत शर्रा। लेकिन ताबत शर्रा आद बाद कलील बिलहमिन, लेकिन ताबत शर्रा गोश्त लेकर आ गया अबू कबीर के पास। फसालहु अबू कबीर कैफा तैतबिही, तुम कैसे ले आए। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, यानी पता है कि कोई चोर थे और चोरों को पछाड़ के आ गया है, ये मार के आ गया है उनको। अब कबूर पूछ रहा बच के कैसे आ गए तुम। फकाला ताबत शर्रा कतलतु शख्सैन अल्लज़ीना काना बिजानिबिन नार, उन दो लोगों को मैंने कत्ल कर दिया जो आग के पास थे। व अतैतु लका बित्ताम, और मैं आपके लिए खाना लेकर आ गया। अब और डर गया यार, दो लोगों को कत्ल कर दे रहा है ये ताबत शर्रा। अब अबू कबीर हुजली की और सरक गई, ठीक है, और हवा टैट हो गई इनकी। और कोई अच्छा जुमला बताएं उर्दू का, कुछ हो गया उर्दू का कोई अच्छा जुमला बताएं। अब्दुल्ला बताओ आप, ठीक है। तो ये हो गया, डर गया, खौफजदा हो गया, हवा खराब हो गई, खौफजदा हो गया, ये बात मैंने कही थी। पसीना से शराबुर हो गए, चलिए बहुत हो गया, ठीक थैंक यू। इख्तला का अखबारन अन लिकाइही बिलगौल, तो मतलब ये भूतों से इनकी मुलाकात के ताल्लुक से काफी चीजें घड़ी गई हैं, उनको पछाड़ा है, मतलब भूतों को निपटाया इसने, ठीक है, उनसे लड़के। तो इसके बारे में हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये वाला कसीदा आप देख सकते हैं, ये वाला शेर जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है। वो क्या है, फ़अस्बहतु वल गौलु जारत ली जारतुन, तो मैं
पड़ोसी भूत मेरा पड़ोसी बन गया, फया जा रहा था अंतमा वाला, तो ऐ मेरी पड़ोसन तुम ज्यादा खतरनाक नहीं हो, तुमसे ज्यादा मैं खतरनाक हूँ, है मेरी पड़ोसन मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक हूँ, तुम ज्यादा खतरनाक नहीं हो। इज्तमा बिबाद सालिक का शनफरा, इसी तरीके से इनकी मुलाकात किससे हुई है? शनफरा से हुई है, अमर बिन बर्राक से हुई है, सुलैक बिन सलका से हुई है। बल्कि शनफरा, ताबत शर्रा, अमर बिन बर्राक, ये तीनों एक जगह कहीं फंस गए थे, फिर अमर बिन बर्राक को किसी ने पकड़ लिया था जब चोरी करने गए थे। वो किस्सा मैं यहाँ पर लेके नहीं आया हूँ, लेकिन बस ये याद रखना कि ताबत शर्रा साथ में थे, इसी तरीके से कौन से आपके शनफरा भी थे, और इसी तरीके से अमर बिन बर्राक भी थे। ये तीनों कहीं पर गए थे जिनमें से अमर बिन बर्राक फंस गए थे, लेकिन इन दोनों ने अपनी चालाकी के जरिए से अपने दोस्त अमर बिन बर्राक को फंसा लिया था। बाकी हमने देखा कि इनके अक्सर जो हमले हुआ करते थे बनी हुजैल पे, क्यों? क्योंकि इनको दुश्मनी थी अपने बाप से नफरत की वजह से, और बाप था कबीले हुजैल से, हुजली था ना, अबू कबीर अल हुजली, अपने बाप के कबीले से नफरत थी, जिसकी वजह से उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। काफी अच्छे शायर हैं, युअतबरु मिन अश-शुअरा अल-मुजीदीन, काफी अच्छे शायर हैं ये। कौन? ये भाई साहब ताबत शर्रा तमय्यज़ा बिक़ुव्वतिन व जज़ालतिल अल्फाज़, चुनांचे इनके शायरी में कुव्वत पाई जाती है, अल्फाज काफी अच्छे अच्छे पाए जाते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा मुश्किल अल्फाज हैं। वत्तसम शअरुहु बिल वाक़िय्या, चुनांचे इनके शेर वाक़िय्यत से, वाक़िय्या का मतलब हकीकत से, जो हकीकत में चल रहा है, वाक़िय्यत को मैं कह सकता हूँ रियलिटी से रिलेटेड रखती थी। मैं समझना चाहूंगा आप में से किसी से इसका मीनिंग क्या हो सकती है। वाक़िय्या पूरा एक इत्तिजा है, आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, नए बच्चे सिर्फ बताना ताकि आपको यूनिट 8 में समझने में आसानी हो बाद में। ये क्या मतलब है इसका वाक़िय्या से? यानी हकीकत पसंद शायर थे, हकीकत पे बात करते थे, क्या मतलब है इसका? कोई बताएगा मुझे? नया बंदा बताए, नया, पुराना नहीं, जिसने पहली बार देखा। जी सर। जी शादाब, मतलब शादाब बताओ, शादाब बताओ। जी सर, वाक़ईयत का मतलब इसी तरह हो सकता है जैसे ज़ुहैर बिन अबी सलमा के बारे में कहा गया है, हजरत उमर कहते हैं कि ये वही कहता है जो किसी में देखता है, यानी ज्यादा उल-फुल इधर उधर की बातें नहीं करता, बल्कि रियलिटी जो है वो बयान करता है अपनी शायरी के जरिए। तो जी सही, वाक़ईयत में ये चीजें, जी वो सच्चाई, रियलिटी मतलब वो सच्चाई की बात है, मतलब वो सच्चाई, उसको सिद्क को एहसास बोलते हैं, सिद्क। तो ये वाक़इया है, थोड़ा अलग है। काफी अच्छी कोशिश, जज़ाकल्लाह। बाकी मुकीबुल इस्लाम आप ट्राई करो। मुबालगा से बचते थे, मुबालगा नहीं करते हाँ थे। नहीं है, नहीं है। चलें एक बच्चे को और, नए बच्चे को एक और कोई मौका, कोई बोले, इशरत या जूफा, आप दोनों में से कोई बोले, फिर कोई पुराना बंदा बोल देना। मिल्ली आप बोल देना फिर। जी जी कोई बोले, अफीफा आप बोलो, आयशा, बसीरुद्दीन, चलो ठीक। तो वाक़इया से इनका शेर मुत्तसिम होता था, वाक़इया पाई जाती, मतलब रियलिटी को बयान करते थे, जो कुछ हो रहा है, ठीक है, जो कुछ अहदास हो रहे हैं, जो कि वाक़यात हो रहे हैं, उसको वाक़इया बोलते हैं, ठीक है। वाक़इया मतलब जो इवेंट्स हो रहे हैं कि ये हो गया, मैंने चोरी करने गया तो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बाकी जो आप ज़ुहैर बिन अबी सलमा का बयान कर रहे थे वो मतलब है सच्चाई, तो सच्चाई वाली बात नहीं है, मतलब जो हो रहा है। तो ये वो शायर नहीं है जो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, दिल के जज्बात, मुजिज़न, अहासीस, मशाइर को निकाल रहे हैं, जो कि रोमांसिया में आता है, ठीक है। ये क्या करते थे, जो अहदास हो रहे हैं, जो इवेंट हो रहे हैं, जो भी वाकयात हो रहे हैं, रूनमा, उनके मुतालिक गुफ्तगू करते थे, जिसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं, वह तखल्लुस मिनल मुक़द्दमात, चुनांचे ये बहुत लंबी मताले वगैरह नहीं पेश करते थे कि मुकदमा शुरू कर रहे हैं, वह तहद्दुस अनिल हालत शख्सिया, इसी तरीके से ये अपनी शख्सी हालत के बारे में भी बयान नहीं करते थे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। इनके शेर में क्या गालिब है, गलबा अला शयही अत-तसल्लुक, यानी चोरी के बारे में बयान करना, बहादुरी के बारे में बयान करना, अपने हथियारों के बारे में बयान करना, इसी तरीके से बात करना कि कैसे हम मोहताजगी से परेशान रहे, कैसे भूख से परेशान रहे, कैसे जिल्लत व खारी का हमें सामना करना पड़ा, ठीक है। अन्नहु इफ्तखरा बिकुव्वतिही व सुरअतिही, इसी तरीके से अपनी शायरी के अंदर इन्होंने फखरिया इजहार किया है अपनी कुव्वत का, अपनी बहादुरी का, इसी तरीके से अपने तेज दौड़ने का। इनका सबसे बेहतर कसीदा क्या है, मुफज्जलियतुहु, इनका वो मुफज्जलिया है, यानी मुफज्जल अज़्ज़ब्बी ने अपनी किताब मुफज्जलियात में, हमने इस पे बात की थी मसादिर शेर अल जाहिली में, ये मुफज्जलियात ये मसादिर शेर अल जाहिली में से हैं, तो इनका कहाँ पर है, मुफज्जलियात में, तो उसको मुफज्जलिया कहा गया। मुफज्जलियात मतलब कई कसीदा जिनको मुफज्जलिया और मुफज्जल अज़्ज़ब्बी ने उनको इख्तियार किया है, तो इनके कसीदे में भी लेकर आया है। दो इन्फॉर्मेशन इनके कसीदे के मुतालिक मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। मैं पूछूंगा कि पहले इनका जो मुफज्जलिया है कौन से बहर में है,
कौन से बहर में है, कितने बैत पर मुश्तमिल है, दोनों कोई बता दे तो अच्छी बात होगी। कितने, कौन से बहर में है, कितने बैत पर मुश्तमिल है जी, इसको लिख भी लेना आप लोग। बताएगा कोई? नहीं बताएगा, रहने दें। बहरे बसीत में है और 26 बैत पर मुश्तमिल है। बहरे बसीत में है और 26 बैत पर मुश्तमिल है। और मैंने बताया कि तीनों ही बंदों का एक एक कसीदा या कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जो बहुत ज्यादा मशहूर है। इनका क्या है, मुफज्जलिया है बहरे बसीत में, शनफरा का लामियतुल अरब है पूरा का पूरा, फिर उसके बाद उर्वा बिन वर्द का पढ़ेंगे, उनका भी एक कसीदा काफी मशहूर है। ठीक है, चुनांचे इन कसीदे को आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। या ईद या लक मिन शौकिन व इराकू व मर तैफुन अलल अहवाली तिराकू यसरी अलल ऐन वल हयातु मुख्तफियन नफ्सी फिदाउका मिन सारा अला साक़ी इन्नी इदा खुल्लतुन तन्नत बिना इलिहा व अमसकत बिदईफिल वस्ल अहबाकू नजौतु मिनहा नजाई मिन बुजैलता इद अलकैतु लैलतन खबत रहतु औराकी लैलतन साहु व अगरूबी सुराअहुम बिलअयकतैन लदा मअद इब्न बर्राकी कअन्नमा हसहसु हसा qad हसन qawadimuhu कअन्नमा हसहसु हसन qawadimuhu औ अम खशफिन बिजी शस्सिन व तिबाकी ला शैय असरउ मिन्नी लैसा जा उज़रिन ज़ा जनाहिन बिजंबिर रीद खफाकू। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, ला शैय असरउ मिन्नी, जो चीज हम देख रहे हैं, इनको फख्र था कि मुझसे अपनी बहादुरी पे, इसी तरीके से अपने तेज दौड़ने पे फख्र हुआ करता था। तो ये याद कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी शायद ये वाला जो ये पहला बैत जो है ना, शायद कहीं ना कहीं तो आ चुका होगा, ये आ चुका होगा कि किसका है, क्योंकि इनके एक मशहूर कसीदे का पहला बैत है। तो इसलिए ये तो पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। और अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बंदा है तो पूरा का पूरा भी पढ़ सकता है, ताकि सारे बैत सारे अशार उसके जहन में आ जाएं। ठीक है, अब इनकी मौत का किस्सा थोड़ा सा बयान है, कैसे इनको कत्ल किया गया। तो हकीकत में ये एक जगह जाते थे, बिलाद हुजैल, यानी अपने बाप के खानदान में ही एक गार हुआ करती थी, वहां पर ये शहद तोड़ने जाया करते थे, शहद, मधुमक्खियों का शहद तोड़ने जाया करते थे, जिसके बारे में हुजैल को पता चल गया। अब हुजैल क्यों इनसे दुश्मनी रख रहा है हमें पता है, क्योंकि अक्सर हमले इन्होंने हुजैल पर किए हैं। अब हुजैल को इनके बारे में पता चल गया, ये ताबत शर्रा यहाँ पर शहद तोड़ने आता है। तो उन्होंने कहा फरसदू लहू लियुक़िउ बिही, कहा अब जब आएगा इसको निपटा देंगे, घात में लगाकर बैठ गए, घात लगाकर बैठ गए, अब जब भी आएगा इसको निपटा देंगे। इला अन वसला हुआ वसहबुहु फवलिजल गारा वतदल्ला। ठीक है, व अगारु अलैहि व अनफरुहु फसबकुहु व वक़फु अलल गारी फहर्रकु अल हबला फतला तअब्बत शर्रा रअसहु। चुनांचे अब ये क्या हुआ कि तअब्बत शर्रा गार में चले गए और वहां पर शहद तोड़ने लगे। अब ये लोग ऊपर से आ गए, ये लोग कहां से, ऊपर से आ गए। अब ऊपर से इन्होंने रस्सी हिलाना शुरू कर दी, गार के ऊपर उसके दहाने पे, उसके मुंह पे खड़ा होकर इन्होंने रस्सी हिलाना शुरू कर दी। तो ताबत शर्रा को पता चल गया ये लोग आ गए, ताबत शर्रा को पता चल गया ये लोग आ गए। और इन्होंने ताबत शर्रा से कहा चलो आओ ऊपर, बाहर आओ, इस रात बाहर आओ। काला मैं तुम्हें नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। काला ला अराकुम, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। कालू बला कद रही, इतना झूठ बोल रहे हो, देख लिया है तुमने हमें। काला फअला मा सअद, कहाँ चढ़ूं मैं, किधर चढ़ूं। कहा अलत तलाकती वल फिदा, यानी कोई शर्त बताओ मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं, क्या करोगे, मेरा मार डालोगे। कहा नहीं, छोड़ देंगे, या तो फिदिया दे देना, कुछ फिदिया दे देना, हम छोड़ देंगे। कालू ला शर्र तलक, यानी उसने पूछा मैं क्यों चढ़ूं, क्या मुझे छोड़ दोगे तुम, कुछ फिदिया लेके छोड़ दोगे। कालू, उन्होंने कहा नहीं, आज तेरी जान नहीं बचेगी, बहुत हमला किए हैं। काला फतराकुम कातिलिया व आकिली जनया ला वल्लाहि ला फ़अल, मैं देख रहा हूं तुम सब मुझे कत्ल कर दोगे और मेरी बोटी बोटी ठीक है कर दोगे तुम, मेरा मुझको कत्ल कर दोगे। वल्लाहि ला फ़अल, मैं अब नहीं आऊंगा ऊपर, अब मैं ऊपर नहीं आऊंगा। वकाना क़ब्ल ज़ालिक, लेकिन ताबत शर्रा की आप जीरकी देखें और इसकी होशमंदी देखें। कान क़ब्ल ज़ालिका क़द नक़ब फ़िल गारी, इन्होंने गार में एक सुराख बना दिया था, एक होल बना दिया था, एक सुराख बना दिया था। हय्याहु लिल हर्ब, जो कि इसने भागने के लिए तैयार कर रखा था। तो अब क्या किया, उस होल में, गार में अंदर से कोई होल होगा, कोई सुराख होगा। फजअल युसीलुल अस्ल मिनल गारि व युरीकुहु, चुनांचे उस गार में अपना आगे से जाता गया और पीछे शहद बिखेरता गया, शहद बिखेरता गया। आप देख रहे हैं गारें वैसे भी ऊपर नीचे की होती हैं, अपना जाता गया और पीछे से शहद बिखेरता गया। सुम्मा आमदा इला ज़क्किन फशद्दहु अला सदरिही सुम्मा इल्तसक़ा बिल असली फलम यब्रह यंज़लिक़ अलैहि, तो इसी तरीके से वो शहद बिखेरता गया और उससे फिसलता गया यहाँ तक कि बाहर निकल गया। ठीक है, कहीं पर जाके बाहर निकल गया। और अब जाके जब बाहर निकला तो दोनों के दरमियान बहुत देर की दूरी थी और कैसे पकड़ सकते थे, इतना तेज तो दौड़ता ही था। लेकिन इनके बारे में आया है ताबत शर्रा को कत्ल किया गया बिलाद हुजैल में 540 में। मैंने बताया 540 का भी तस्करा है
530 का भी तस्करा है और 535 का भी तस्करा है। इनकी वफात के ताल्लुक से 540 का भी तस्करा है, 530 का भी और 535 का भी तस्करा है। इसको आप याद रखेंगे। जबकि ये बात याद रखें, इनको जो है यहाँ पर कत्ल कर दिया गया 540 में, और इनको डाल दिया गया कहां पर, एक गार में जिसको रहमान नामी गार में डाल दिया गया। ऐसा कोई सवाल बन सकता है? अभी तक नहीं बना है, लेकिन बन सकता है। रहमान नामी गार में इनको डाल दिया गया, और उसके बाद इनका जो लाश मिली है वो कब मिली है? 607 में। ये बात मैंने बताई थी कि 535 मान लो, 530 मान लो या 540 मान लो, यहां पर इनको कत्ल किया गया, लेकिन 607 में इनकी लाश मिली है। 607 में इनकी लाश मिली है। क्लियर है? ये हुआ आपका किसके बारे में? ताबता शर्रा के बारे में। ताबता शर्रा के बारे में थोड़ा सा खुलासा जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है ताबता शर्रा ये आपका शुआराए सालीक में से है। शायरुन फारिसुन अद्दाउन, इस चीज को हम देखेंगे, मोटी मोटी चीजें। तो इनकी पैदाइश, इनकी वफात कब हुई है? 530 है, 535 है, इसी तरीके से आपका 540 में इनकी वफात हुई है। ये आपके कबीले फहम से ताल्लुक रखते हैं। जगह कौन सी है? तहामा के रहने वाले थे, तहामा वल हिजाज, यहाँ के रहने वाले थे। फहमी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, फहमी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरीके से इनकी माँ जो है, इनकी माँ चूंकि एक हबशिया थी, एक लौंडी थी, जिसकी वजह से इनको कालापन मिला था, जिसकी वजह से इनको मिन अगरबित अरब यानी काले कलूटे लोगों में से इनको कहा गया है। ठीक है, काले कलूटे लोगों में से इनको कहा गया है। इनका नाम क्या है? साबित बिन जाबिर, साबित बिन जाबिर बिन सुफियान अबू ज़ुहैर इनकी कुनियत है। अबू ज़ुहैर अल फहमी, फहम कबीला है जिसकी वजह से इनको फहमी कहा गया। इससे पहले भी मैंने बताया कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तीनों कहाँ रहते थे, तो ताबता शर्रा रहते थे तहामा में, शनफरा रहते थे यमन में, उर्बा बिन वर्द रहते थे नजद में। ये कबीले फहम से हैं। तीनों के कबीले में अगर बताने की बात करूं तो ताबता शर्रा किस कबीले से थे? कबीले फहम से। शनफरा किस कबीले से थे? आपके कबीले अज़द से। इसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूं, उर्बा बिन वर्द किस कबीले से थे? तो उर्बा बिन वर्द जो है आपके नजद कबीले से थे। ठीक है, बाकी इनको ताबता शर्रा क्यों कहा गया उसके बारे में हमने 2-3 किस्से देखे। एक दुम्बे वाला किस्सा देखा, दूसरा किस्सा हमने सांपों वाला किस्सा देखा। वो दुम्बा जो पेशाब करने लगा था फिर भूत बन गया तो ताबता शर्रा हो गया। फिर सांप लेकर आ गए, माँ ने कहा कुछ लेकर आओ, तुम कुछ लेकर नहीं आते, वो सांप बन गया। फिर उसको कहा कि ताबता शर्रा, इसने तो बुराई को छुपा लिया। और तीसरा कौल ये है तलवार वाला कि जब भी हमले के लिए निकलते थे तो तलवार निकलते थे अपनी बगल में। इबित के माने होते हैं बगल के, तो ताबता माने बगल में छुपाना, बगल गिर करना जो होता है, बगल में रखना। तो तलवार छुपाकर निकलते थे। इनकी माँ कहती समझ रही हूँ कहाँ जा रहा है तू, बुराई करने जा रहा है। ठीक है, ताबता शर्रा, तुमने बुराई को बगलगीर किया है, बुराई को लगाया है, कुछ करने जा रहे हो, कांड करने जा रहे हो तुम। ठीक है, तो ये बात इनकी हो गई। इसी तरीके से मोटी बात हमने देखी काना अद्दान। ये कौन थे? काना अद्दान बहुत तेज दौड़ने वाले थे। मैंने बताया शनफरा भी बहुत तेज दौड़ने वाले थे, लेकिन दोनों के बारे में अलग अलग जुमले आएंगे। तो पहला जुमला इनके बारे में आया कि काना अहदुन ला यस्ततिउ इदराकहु व लिहाक़ बिही, कोई इनको पकड़ नहीं सकता था। दूसरा इनके बारे में आया आदा जी साक़ैनी, कोई भी सही सालिम इंसान, 2 पांव वाला, 2 सिंटलियों वाला, उनसे सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले थे। तीसरी बात ये आई कि हिरनों को पकड़ लिया करते थे, हिरनों, और हिरन जो है इनसे बच नहीं सकते थे। अगर हिरन इनकी नजर पड़ जाए फिर उसको भून कर खाया जाया करते थे। चौथी बात इनके बारे में ये आई कि इतनी तेज दौड़ते थे, फकाना ला युरा ले शिद्दते सुराती, इतने तेज दौड़ा करते थे कि अपने दौड़ने की तेजी की वजह से दिखते भी नहीं थे, हवा बन जाते थे, गोली की रफ्तार से चलते थे। इसी तरीके से इनके बारे में आया कान हादस समई वल बसरी, ठीक है, बहुत तेज कान भी इनके काम करते थे, जिसकी वजह से दूर से फकान यस्मउ वतल खैल मिन बईद, बहुत दूर से घोड़ों की आवाज को सुन लिया करते थे। ये चीज हमने देखी। इसी तरीके से एक बड़ा वाकया जो इनके सौतेले बाप का है, हमने इससे पहले पढ़ा था अंतरा बिन शद्दाद की सौतेली माँ ने उनके साथ गलत सलूक किया था, और यहाँ पर इनके सौतेले बाप ने इनके साथ गलत सलूक किया। इनके बाप का इंतकाल हो गया बचपन में, तो इनकी माँ ने अबू कबीर अल हुज़ली से शादी की। अबू कबीर अल हुज़ली इनको पसंद नहीं थे, चुनांचे अबू कबीर हुज़ली इनके खिलाफ हो गए थे और दोनों ने मशवरा कर लिया था मियां बीबी ने मार दो इसको। चुनांचे इन्होंने मारने का वाला वाकया हमने देखा कि मारने का इरादा किया लेकिन मार नहीं पाए, चूंकि अपने बाप से नफरत थी, जिसकी वजह से कानत मुअदम इगारातिही अला बनी साहिला मिन हुदैल, इनके अक्सर जो हमले जो हुआ करते थे वो हुजैल के बनी साहिला पर, व बनी नफासा मिन कबीलत किनाना, और कबीले किनाना के बनी नफासा पर इनके अक्सर हमले हुआ करते थे। ठीक है, बाकी इनकी वफात के बारे में हमने देखा। तो ये चीज उम्मीद करता हूं आपको फायदा करेगी। बताएं, 1 घंटा ताबता शर्रा पे अजीब मसला यार, क्या से क्या हो गया देखते देखते। फिर उसके बाद शनफरा को देखें,
फिर उसके बाद यहाँ पर आप शनफरा को देखने की कोशिश करें, इन पे इतना टाइम नहीं लगेगा, निकल जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी से, क्योंकि शनफरा पे काफी बातें आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो शनफरा कौन है? या आपके मामू हैं। चूंकि हमने बताया मामू पहले होना चाहिए, तो 525 इनकी वफात है, फिर उसके बाद 535 मान लो ताबत शर्रा की वफात है, फिर उसके बाद 596 उर्वा की वफात है, फिर उसके बाद सुलैक की 605 वफात है। इन चारों का मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, ठीक है, चारों का मैंने शुरू में ही बता दिया। तो शनफरा जो हैं ये आपके यमन के हैं। शनफरा जो हैं आपके कबीले अज़द से ताल्लुक रखते हैं, कबीले अज़द यमन का कबीला है। तो शनफरा जो इनका लक़ब है, बताते हैं कि हिजरत से 70 साल पहले 525 में, और इनका नाम साबित बिन अवास है। मैंने बताया था औस मत कहिएगा, साबित बिन अवास, दोनों का नाम साबित है, बाकी आगे का, ठीक है। कबीले अज़द से ताल्लुक रखते हैं और तबके सानिया के, ये भी खूंखार लोगों में से हैं। जैसे उनके बारे में था कि काना मिन फुत्ताकिल अरब व अदायिम, बहुत ज्यादा तेज दौड़ने वाले थे। वह हुआ अहदुल खुलआ, और ये भी उन लोगों में से हैं, यानी खुलआ लोगों में से, अल्लज़ीना तबर्रअत मिनहुम अशाइरुहुम, जिनसे उनके खानदानों ने उनसे बरात का इजहार कर लिया था। किसने? इनसे, इनके खानदान वालों ने इनसे बरात का इजहार कर लिया था। कतलहु बनु सलामान, इनको कत्ल किया था किसने? बनु सलामान ने। और बनु सलामान मैं आपको बताने की कोशिश करूं ये कौन है। बनु सलामान जो है इनके ननियाल वाले हैं। कौन है? इनके ननियाल वाले हैं। बनु सलामान कौन है? इनके ननियाल वाले हैं। दो कबीलों का नाम इनकी जिंदगी में आया है। एक कबीले का नाम कौन है? अज़द का। ये अज़द क्या है? असल इसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये बनु सलामान में रहा करते थे, क्योंकि ये इनके ननिहाल है, क्योंकि ये इनका ननिहाल है। तो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ताबता शर्रा जो हैं वो अपने ददियाल वालों के पीछे रहते थे, यानी अबू कबीर अल-हुज़ली बाप है, सौतेले बाप है गरचे, तो उनके पीछे रहते थे। और ये शनफरा जो हैं अपने ननिहाल वालों के पीछे रहते थे। उसकी वजह अभी पता चलेगी क्यों उनके पीछे पड़े रहते थे, वो आपको इंशाल्लाह अभी समझ में आएगा। ये भी काफी तेज दौड़ने वाले थे, और उसकी एक मिसाल इन्होंने क्या दी गई? वक़ीसत क़फ़ज़ातुहु लैलत मक़तलिही, ये जितना एक कदम रखते थे, एक कदम दूसरा कदम रखते थे, जब इनके पैरों की जो कदम को नापा गया, जिस साल इनको कत्ल किया गया, फ़कानत अल-वाहिदतु मिनहा क़रीबन मिन 20 ख़ुतवन, जैसे आप 20 स्टेप चलकर जाओगे ना, उसमें इनकी एक छलांग हुआ करती थी, उतनी एक छलांग हुआ करती थी। और 22 स्टेप या इतनी की तो पूरी क्रिकेट की पिच होती है, ठीक है, 22 स्टेप की हमारे यहाँ पर, तो इतनी लंबी जो है इनकी छलांग हुआ करती थी। मैंने कहा ना, दोनों तेज दौड़ा करते थे, लेकिन दोनों के तेज दौड़ने की अलग अलग मिसालें, अलग अलग एग्जाम्पल इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो ये भी क्या थे? इनके यहाँ भी हफ्शी खून इनके जिस्म में घूमता था, क्योंकि हफ्शी माँ से ताल्लुक रखते थे, जैसा कि ताबता शर्रा भी हफ्शी माँ से ताल्लुक रखते थे। नशा फी बनी सलमान मिन बनी फहम, बनी फहम का एक कबीला है बनी सलमान, वहां पर इनकी परवरिश हुई है। अज़दी असल कबीले के हैं, लेकिन बनी सलामान में रहा करते थे, जो कि इनका ननिहाल का कबीला है। अब ननिहाल में कैसे पहुंचे, कैसे रहा करते थे, वो सवाल देखिए, वो कैसे रहा करते थे। फलम्मा कबीरा, ठीक है, जब ये बड़े हुए तो इनको पता चला, अन्नहु उसिरा सगीरन, इनको बचपने में इनको कैद करके यहाँ पर लाया गया था। और वो कौन है? इनके मामू ने इनको पकड़ कर लेकर आए थे, और इनके मामू ने इनके बाप को कत्ल किया था। तो जिनमें रहे, फनशअ फीहिम, तो उनमें बड़े हो गए। फलम्मा आलिमा, जब उनको पता चला यार यही लोग मेरे अब्बू को कत्ल किया, मेरी अम्मी को यहीं लेकर आ गए, क्योंकि अम्मी तो इनकी थी, इनकी बहन थी, इनकी बेटी थी, और मुझे भी यहाँ पकड़ के लेके आ गए, इन्होंने मेरे बाप को मारा है। जब इनको पता चला, वह अक़समा, तो इसने कसम खाई, उनको छोड़ दिया। उस टाइम से आलिमा गादरहुम, उनको छोड़ दिया। वह अक़समा अन यक़्तुला मिनहुम 100 रजुलन, मेरे बाप को मारा इन्होंने, अल्लाह की कसम इनके 100 लोगों को निपटा के रहूंगा। कितने को? 100 लोगों को इनके निपटा के रहूंगा, और 100 लोगों को मारा भी है, वो हम देखेंगे। अन्नहु खस्सा बिग़ज़वातिही बनी सलमान बिन मुफ़िजल अज़दीयीन, चुनांचे इन्होंने अपने जो हमले किए हैं वो किस पर? बनी सलमान पर। तो इन्होंने ननिहाल वालों पर, और ताबता शर्रा ने ददियाल वालों पर, ठीक है। ये सिमिलरिटीज जो हैं आपको देखना होंगी। सारन लिवालिदिही व इंतकामन मिनहुम, क्यों? क्योंकि मुझे अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेना है। वकान शर्फ शनफरा सरियल अदवी ला तुदरिकुहुल खैलु, चुनांचे शनफरा भी जो है बहुत तेज दौड़ने वाले थे, यहाँ तक कि इनको घोड़ा भी नहीं पकड़ पाता था। ये अलग जुमला है। उनके बारे में 4 जुमले मैंने बताए ताबता शर्रा के, इनके बारे में 2 जुमले आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? 2 जुमले। ये भी बहुत तेज दौड़ने वाले थे, और तीसरा जुमला यहाँ तक के बारे में कहा जाता था कि वो शनफरा से भी तेज दौड़ने वाला है। आपने ये बात समझ चुके होंगे कि कब बोला जाता है ये वाला लफ्ज, आदा मिनश शनफरी,
माना कोई मिसाल में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला हो, वो बिल्कुल एक नमूना बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए, तो लोग कहते हैं वो तो उससे भी तेज दौड़ने वाला है, तो आदा मिन शनफरा कहा जाता है। तो हमने ताबता शर्रा के दौड़ने की 4 मिसालें देखी थी। यहाँ पर इससे पहले कहा गया कि दौड़ने में इतने तेज थे कि 20 स्टेप के बराबर इनकी एक छलांग हुआ करती थी, एक बात ये कही गई। दूसरी बात ये कही कि घोड़ा भी इनको नहीं पकड़ सकता था। तीसरी बात ये कही कि आधा मिनट शनफरा इनके बारे में कहा जाता था। ठीक है, तो दौड़ते ये भी तेज थे, इनके बारे में अलग जुमले हैं, अलग कुछ है, जो बात मैं बिल्कुल 3-4 बार आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि इनके लिए अलग जुमले आएंगे, अलग एग्जाम्पल आएंगी। वकाना युगीरु अला बनी सलमान, चुनांचे बनी सलमान पर ये हमला किया करते थे। आश शनफरी शनफरा फिल बरारी वल जिबाल वहीदन, चुनांचे पहाड़ों में गुफाओं में अलग रहा करते थे। हत्ता ज़फरा बिही आदाउहु, चुनांचे यहाँ तक की बात है, यानी अकेले रहा करते थे। चुनांचे दुश्मनों ने इनको कत्ल कर दिया। दुश्मन कौन थे? यही बनु सलमान के लोग। तो ताबता शर्रा जिनके पीछे पड़े थे, बनु हुजैल के पीछे ददियाल वाले, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया ताबता शर्रा को। शनफरा जिनके पीछे पड़े थे, ननियान वाले, बनु सलमान वाले, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। तो जिनके पीछे पड़े थे ना, उन्हीं ने उनको कत्ल कर दिया, दोनों को कत्ल किया गया। और यहाँ तक कि अभी पढ़ेंगे शायद उर्वा बिन बर्द को भी कत्ल किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये चोर चपंगे लोग हैं, इनको ऐसे ही कत्ल किया जाता है। हत्ता वकीला इन्नहु सुम्मिया शनफरा, इनको शनफरा क्यों कहा गया? अभी ताबता शर्रा की हमने देखे, तो इनको शनफरा कहा गया लिगिलजति शफतैही, इनके होंठ बहुत मोटे मोटे थे, जो कि ये बताते थे कि काफी काले हैं। एक ये बात कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि इनकी तबीयत में काफी तेजी थी। तेज इंसान कहते हैं ना, बहुत तेज इंसान है, तो वो तेजी थी इनकी तबीयत में, इनकी फितरत में। तो 2 वजह बताई गई इनको शनफरा क्यों कहा गया। ताबता शर्रा क्यों कहा गया? 3 कहानियां बयान की गई। शनफरा क्यों कहा गया? 3 वजह बयान की गई। 2 वजह बयान की गई। क्या? पहला ये शनफरा इसलिए कहा गया क्योंकि इनके होंठ मोटे थे, जिससे कालापन का जाहिर होता था। और दूसरा ये कि इनकी तबीयत में तेजी थी। शनफरा अल अज़दी, यानी इनके बारे में कहीं ना कहीं ये हन्ना फाखुरी की बात होगी कि मुमस्सिलुल जानिब शैतानी मिन हरकत साली कल अरब, साली के अरब में ये ऐसा इंसान है जो शैतानी चीजों को दिखाता है। मतलब इनके ऐसे ऐसे काम थे जिनके यहाँ शैतानी पहलू का रुझान हमें ज्यादा नजर आता है। आप देखें, जिस कसीदे की बात मैं कर रहा था कि तीनों का मशहूर कसीदा है, इनका भी है लामियतुल अरब, जो कि किस बहर में है? जल्दी बताना, कितने बैत हैं, कितने बहर हैं? बहरे तवील में है 69 या 68 में। बहरे तवील में है 68 में, बहरे तवील है 68 में। ठीक है, 68 में। इससे पहले मुफज्जलिया का बताया था मैंने, बताना। बहरे बसीत में है 26 में। बहरे बसीत में है 26। ठीक है, बहरे बसीत में है 26। तो इन दोनों को याद कर लेना। अगला उर्वा का भी देखेंगे, उनका भी मशहूर कसीदा है। क्लियर है? तो अब इनका ये मशहूर कसीदा है लामियतुल अरब, कई जगहों पे पढ़ाया भी जाता है, कई एमए में पढ़ाया जाता है, इसका तर्जुमा वगैरह मैंने देखा है, बच्चों ने मुझे भेजा है। तो आप इनके इस कसीदे को भी पढ़ लेना, क्योंकि ये इस तरीके का, ये वाला तो एग्जाम में आ चुका है, ये वाला पक्का एग्जाम में आ चुका है। अकीमू बनी उम्मी सुदूर मतीयुकुम फइन्नी इला कौमिन सिवाकुम ला अमयलू फक़द हमतिल हाजातु वल लैलु मुक़मिरु व शुद्दत लितय्याति मताया व रुहुलु व फिल अर्ज़ि मन अन लिल करीम अनिल अदा व फीहा लिमन खाफल क़ुला मुतअज़्ज़िलु। ठीक है, कला या कुला। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इनका ये वाला, बाकी लामियतुल अरब को थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मुफज्जलिया को ताबता शर्रा उनको भी पढ़ लेना, इनको भी पढ़ लेना। इसी तरीके से शनफरी जो है, शनफरा जो है लामियतुल अरब से मशहूर हैं, जो कि एक फन्नी तौर पे एक डॉक्यूमेंट की हैसियत रखती है, क्योंकि इसके अंदर शनफरी जो है, जो देहातों की जिंदगी होती है, जो देहाती जिंदगी होती है, उसके बारे में बयान करते हैं। इसी तरीके से शायर अपना सहरा के उससे कितनी मोहब्बत थी उसको दिखाते हैं। इसी तरीके से आजादी और अकेलेपन से उनको कितना शौक था, अकेला रहना, आजाद रहना, उसके कितने दिलदादा थे, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, चुनांचे अक्सर इनकी जो लामियतुल अरब में इनकी जो शायरी है वो क्या बताती है, तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे इनकी लड़ाई चली है, किसके दरमियान, इनके और बनी सलमान के दरमियान। बाकी जो है अपनी चोरी के बारे में, अपनी मोहताजगी के बारे में, अपने हमलात के बारे में, अपने हमले जो इन्होंने किए हैं उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो 2 जुमले जो ये लिखे गए लामियतुल अरब के बारे में, इसको भी जहन में रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेकिन शुरुआत में ही मैंने पूछा था कि अभी तक एनटीए ने शुआराए सालीक में से एक भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा है। यार ये बात समझ में, एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं पूछा है। तो जो बनु सलमान को छोड़कर गए थे, ये कहाँ गए थे? फहम के पास चले गए थे। चुनांचे ताबता शर्रा शनफरा एक साथ रहते थे। बात समझ में आ रही है? बनु सलमान के पास बच्चे में रहते थे, उसिरा सगीरन, बच्चे में रहते थे। सुम्मन तकला वगादरहुम सुम्मन तकला इला कबीलत फहम, उनको छोड़कर कबीलत फहम के पास चले गए। तो पहले बनु सलमान के पास रहते थे,
बनु सलमान की हकीकत पता चली, यार इन लोगों ने मुझे ही निपटाया है, मेरे बाप का कत्ल किया, मुझे बचपन में पकड़ के लाए हैं, उनको छोड़ दिया और कहाँ चले गए? कबीले फहम के पास। और कबीले फहम किसका है? भांजे का कबीला है, इनकी बहन का कबीला है, बहन जहाँ पे ताबत शर्रा की माँ, ठीक है, उनके पास चले गए और दोनों साथ में रहा करते थे। यहाँ तक कि एक दूसरे को उस्ताद शागिर्द का भी नाम दिया जाता है या दोस्तों का भी नाम दिया जाता है, दोनों को। बाकी जो लामियतुल अरब है, जो इसकी शरह किसने की है? एक मुबर्रिद ने की है। किसने की है? मुबर्रिद ने, तबरीजी ने की है और ज़मख़शरी ने की है। ये तीनों नाम लिख सकते हो अच्छे तरीके से। इससे पहले मुफज्जलिया का भी मैं आपको बताऊंगा। किसका? मुफज्जलिया की किसने की है? मुफज्जलिया की भी आपका जो मुफज्जलिया अभी ताबत शर्रा का गुजरा, उसकी देखें, उनकी शरह की है खतीब अत-तबरेज़ी ने, ठीक है। दूसरा की है आपका इब्नुल अंबारी ने, और तीसरे नंबर पर है मरज़ूकी ने। तो दोनों, ये तीनों याद करेंगे आप, ठीक है। तो लामिया की जो शरह की है तीन लोगों ने, मुबर्रिद ने, तबरीजी ने, ज़मख़शरी ने। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है लेकिन आ गया, लेकिन आप लोग एज कर जाओगे अगर आपने पढ़ा होगा। एज करने का मतलब दूसरे लोग कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर आ गया ऐसा सवाल में तो आप ही लोग जवाब दे पाओगे इंशाल्लाह। तो मुफज्जलिया किसका है? ताबत शर्रा का, जिसकी शरह किसने की है? खतीब तबरेज़ी ने, दूसरा इब्नुल अंबारी ने, तीसरा मरज़ूकी ने, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करोगे। फिर उसके बाद शनफरा ने कसम खाई थी कि मैं, जो ऊपर हम देख चुके थे कि मैं इनसे बनु सलमान के कितने 100 लोगों को कत्ल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया? 90 को कत्ल कर दिया गया। फबकिया अलैहि तमामु नज़रिही, चुनांचे अभी पूरी नजर पूरी नहीं कर पाए थे, यहाँ तक कि फमर्रा रजुलुम मिन बनी सलमान का एक आदमी इनके पास से गुजरा, बिजमजमतिही, इनकी खोपड़ी के पास से, और इनकी खोपड़ी पे पांव मारा। फअक़रत रिजलुहु, चुनांचे उसका पांव इनकी खोपड़ी में फंस गया, इंशाअल्लाह, ठीक है, इनकी खोपड़ी में फंस गया। फतम्मा नज़रुहु, और वो भी मर गया, उसका पांव खोपड़ी फंस गया और वो गिर गया किसी भी अंदाज में, तो वो भी मर गया। कालू, और उसके बाद जो कत्ल का ऊपर वाकया आया, अगरचे वाकया इनका जिक्र नहीं किया, हमने ताबत शर्रा के कत्ल का वाकया देखा था और काफी अजीब सा वाकया है, अलग अलग अकवाल हैं जिसकी वजह से मैं कत्ल का इनके वाकया नहीं लाया। लेकिन फिर भी जब लोगों ने इनको घेरा और इनको मारना चाहा और इनको पकड़कर इनको निपटाना चाहा, तो इनसे पूछा कि ऐना नक़बुरु का, हम तुम्हें कहाँ दफनाएं? कहा, और ये एग्जाम में आ चुका है, ला तक़बुरूनी इन्ना कब्री मुहर्रमुन अलैकुम वलाकिन अबशिरी उम्मा आमिर, मुझे तुम कहीं मत दफनाओ, मेरी कब्र कहीं पर मत खोदो, क्योंकि मेरी कब्र खोदना तुम पर हराम है, तुम मुझे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये वाला भी आप इनका देख सकते हैं, ये वाला भी कसीदा इनका देख सकते हैं। और ये वाला जो मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। पहला वाला बैत, ला तक़बुरूनी, किसने कहा था, ठीक है। इसी तरीके से ताबत शर्रा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर एक और चीज मुझे कहना चाहिए थी। ताबत शर्रा के बारे में शनफरा ने ताबत शर्रा को उम्मे अयाल का लक़ब दिया है। किसका लक़ब दिया है? उम्मे अयाल को। किसका लक़ब दिया है? उम्मे अयाल का, ठीक है। किसको? ताबत शर्रा को किसने? शनफरा ने, यानी मामू ने भांजे को उम्मे अयाल का लक़ब दिया है, ठीक है। ये हुआ आपका शनफरा के बारे में। तो शनफरा के बारे में आप मोटी मोटी बातें यही याद कर सकते हैं कि साबित अवास इनका नाम है। इनकी पैदाइश जो हुई है वो आपके कब हुई है? वफात जो हुई है वो आपकी 525 में, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके कबीले अज़्द से ताल्लुक रखते थे, जो कबीला यमन का कबीला है, तो यमन में ये रहा करते थे। ये मोटी मोटी बात हो गई। इसी तरीके से ये भी आपके जो हैं एक हबशी माँ से ताल्लुक रखते थे। इससे एक हबशी माँ से ताल्लुक रखते थे। इनकी माँ हुआ करती थी कबीले बनी सुलेमान की। तो बनी सलमान जो है इनको इनसे नफरत हो गई थी। क्यों बनी सलमान से नफरत हो गई थी? हकीकत तो यह है कि बनी सलमान में ही की परवरिश हुई है, लेकिन उनको बाद में चला ये बनी सलमान वाले, मेरी माँ के घर वाले, मेरे मामू, मेरे नाना, मेरे ननियाल वाले, इन लोगों ने मुझे कैद कर लिया था और इसी तरीके से मेरे बाप को कत्ल किया गया था। अब इनको छोड़ के जाता हूं, अब इंशाअल्लाह इनसे 100 लोगों को कत्ल करूंगा, इनसे इंतकाम लूंगा, इनके 100 लोगों को कत्ल करूंगा। और उसके बाद इनको छोड़कर चले गए थे, 99 को कत्ल किया, फिर हमने देखा कि 100 का कैसे इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से ये इनका हमने देखा। इसी तरीके से इनको शनफरा कहा जाता है। शनफरा की 2 वजह हमने देखी। एक वजह यह है कि इनके होंठ मोटे मोटे थे या कालापन था जिसकी वजह से शनफरा कहा गया, या दूसरा लिहिद्दतिही फी तबइही, लिहिद्दतिन फी तबइही, इनकी फितरत में जो है तेजी पाई जाती थी जिसकी वजह से इनको शनफरा कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? शनफरा कहा जाता था। इसी तरीके से जो मैंने बात बताई थी, हमने ताबत शर्रा की 4 वजह या 4 एग्जाम्पल देखी थी कि उनको दौड़ने वाला कहा जाता था, बहुत तेज दौड़ते थे। तो इनके बारे में भी कहा गया ये भी बहुत तेज दौड़ते थे, जिसकी एग्जाम्पल कुछ और हैं। ये भी बहुत तेज दौड़ते थे, तो उसके बारे में एक बताया कि जब इनके पाँव को, इनकी छलांग को नापा गया तो 20 स्टेप्स के बराबर निकली।
इशरीना खुतवतन 20 स्टेप्स के बराबर निकली एक छलांग इनकी। एक ये बात पता चली। दूसरा ये पता चला कि ला तुदरिकुहुल खैल, ये इतनी तेज दौड़ा करते थे कि घोड़े भी इनको ना पकड़ सके। तीसरा ये पता चला कि इनके बारे में कहा जाता था आदा मिनश्शनफरा, आदा मिनश्शनफरा। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी इनका एक मशहूर कसीदा है लामियतुल अरब, ठीक है। लामियतुल अरब लोगों ने, कहने वाले ने कहा कि इसकी जो अदबी अहमियत है बिल्कुल मुअल्लकात के बराबर है, गर्चे मुअल्लक़े के जो उसको मकाम ना दिया जा सका। ये आपका 68 बैत पर मुश्तमिल है, 68 बैत पर मुश्तमिल है और बहरे तवील में है। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शायद कहा करते थे अल्लिमु औलादकुम कसीदत शनफरी, ठीक है, अपनी औलादों को जो है शनफरा का कसीदा सुनाओ, शनफरा का कसीदा सिखाओ। ये कौन कहा करते थे? आपके ये कहा करते थे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरीके से लामियतुल अरब में इन्होंने क्या जिक्र किया है, तो हमें पता चला लामियतुल अरब में इन्होंने अपनी जिंदगी का तस्करा करने की कोशिश की है। चुनांचे देहात की जो जिंदगी होती है उसको पेश करने की कोशिश की, कैसे ये अकेला रहना, आजाद रहना पसंद करते थे उसका तस्करा किया। फिर उसके बाद शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि किस तरीके से ये लड़ाई चलती रही इनके ननियाल वालों के बनी सलामान के साथ, उसका तस्करा किया। बाद में इन्होंने अपनी जिंदगी का कैसे चोरी चकारी और इन चीजों का इन्होंने अपने कसीदे में यानी तसालुका जिसको कहेंगे उसका तस्करा किया। हमासा और बहादुरी, इन चीजों का इन्होंने अपने कसीदे में तस्करा किया है। तो ये हुआ आपका शनफरा के बारे में। उसके बाद इंशाअल्लाह हम उर्वा बिन वर्द के बारे में, और उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह टाइम पे खत्म हो जाएगा। उर्वा बिन वर्द की शख्सियत बहुत पसंद आती है और शुरुआत में मैंने इसका तस्करा किया था क्यों पसंद आती है, क्योंकि ये इन दोनों की तरह नहीं थे। ये दोनों ऐसे थे, उनके कबीले वालों ने भगा दिया था। ये उर्वा बिन वर्द एक खानदान से थे, एक अच्छे खानदान से, खुद सैयद थे, लेकिन उनको छोड़कर आ गए और चोरी चकारी करने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी फिलॉसफी बन गई थी जिंदगी की। वो क्या बन गई थी? फलसफतुल हयात बन गया था। यार ये अमीर लोग गरीबों के ख्याल ही नहीं रखते हैं, गरीबों का कुछ करते ही नहीं है, तो गरीबों को लूट कर, गरीबों से माल छीन के, ये आपका मालदारों से माल छीन के ये आपके गरीबों पर खर्च कर दिया करते थे, चोरी करके उनसे छीन के। ये इनकी जिंदगी का फलसफा था। तो इनको क्या कहा जाता है? अमीरुस सालिक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, अमीरुस सालिक जी। इस वजह से फरमाया क्योंकि इसमें अखलाक सिखाते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों फरमाया कि अल्लिमु औलादकुम कसीदत शनफरी फइन्नहा तुअल्लिमुकुम अखलाकुकुम, ऐसा कोई अल्फाज भी हैं क्योंकि वो तुम्हें अखलाक सिखा देगी। ठीक है, क्योंकि उसमें उनके जी मकारिमल अखलाक, मकारिमल अखलाक, ठीक है, मकारिमल अखलाक, क्योंकि वो तुम्हें मकारिम अखलाक सिखा देगी। ये बात नूर फातिमा ने पूरा जुमला लिख दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये किसने फरमाया? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो ये जुमला भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, उमर बिन खत्ताब। ठीक है, तो उर्वा बिन वर्द की बात चल रही थी। इनकी शख्सियत से आपको दिलचस्पी हो जाना चाहिए। एक अच्छा इंसान था। ठीक है, तो आप देखें जाहिली शायर हैं और लुक़िबा बिअमीर सआलिक, इनको अमीर सआलिक का लक़ब दिया गया। किसका? अमीर सआलिक का लक़ब दिया गया। एक ये बात है। फिर उसके बाद इनको उर्वतुस सालिक भी कहते हैं। उर्वा के माना होते हैं बंधन के। मतलब ये तमाम सालिक को अपने पास इकट्ठा करते थे, बंधन की तौर पे काम करते थे, तमाम को जमा करते थे। और अगर तमाम सालिक को, इन चोरों को, इन लफंगों को, इन डकैतों को अगर कोई दिक्कत आती भी थी तो उनके खाने पीने का इंतजाम, उनकी जिंदगी का रहन सहन का इंतजाम कौन करते थे? उर्वा बिन वर्द करते थे। तो हमने देखा था कि उर्वा बिन वर्द की पैदाइश जो है 540 में और इनकी वफात जो है 596 में। इनकी वफात कितनी आएगी आपकी? 596 में। 607 नहीं आएगी बल्कि 596 में इनकी वफात आएगी, जो शुरुआत से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं। कितने में आएगी? 596 में। जबकि सुलैक बिन सलका की आएगी 605 में। सुलैक बिन सलका की आएगी 605 में। तो आप उनका एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, किसके कितना याद करेंगे। शनफरा का आप याद करेंगे 525, शनफरा का 525, 535 याद करेंगे ताबत शर्रा का। इसी तरीके से 596 वफात याद करेंगे उर्वा बिन वर्द की और 605 वफात याद करेंगे किसकी? सुलैक बिन सलका की। ठीक है, ये इस तरीके से आप करेंगे। तो ये अब्स के शायर हैं। किसके? अब्स के शायर हैं। कबीला अब्स से ताल्लुक रखते हैं, उनके घुड़सवारों में से हैं, उनके सालूक में से हैं। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था इन तीनों के बारे में ये लफ्ज आएगा कि शायर हैं, फारिस हैं, घुड़सवार हैं, सालूक हैं। तीनों के बारे में आएगा। किसके बारे में? तीनों के बारे में। हाँ, इनके बारे में दौड़ने के बारे में नहीं आएगा, ये दौड़ते बहुत थे ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ताबत शर्रा और शनफरा के बारे में आएगा कि वो बहुत तेज दौड़ा करते थे। काना यसरिको लियुतइमल फुकरा, ये देखें, ये नोबेल, ठीक है, रीजन।
काना यस्रिकु लितअमल फुकरा व युहसिना इलैहिम, ये चोरी क्यों किया करते थे, इन्होंने ये प्रोफेशन क्यों इख्तियार किया, ताकि फकीरों को खिलाएं, उनके साथ अच्छा मामला करें। व काना युलक़ब उर्वतुस सालीक, और इनको इसी वजह से सालीक का एक बंधन भी कहा जाता था। क्यों? लिजमअही इय्याहुम, ये उनको जमा करके रखते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। इदा अखफकू फी गज़वातिहिम, जब उनको किसी भी तरीके की परेशानी लाहिक होती, जब किसी भी तरीके की मुसीबत में वो गिरफ्तार होते तो उन पे अच्छा मामला उनके साथ किया करते थे। वलम यकुल लहुम माअशुन वला मग़ज़ा, और जीने के लिए कोई सबील उनके पास नहीं होती थी, कोई तरीका उनके पास नहीं होता था। ये काम कौन करते थे? उर्वा बिन वर्द उनके लिए चीजें इकट्ठा करते थे। काना उर्वा बिन वर्द व अंतरा बिन शद्दाद को देखें, अंतरा बिन शद्दाद भी कबीले आपसे से ताल्लुक रखते हैं, उर्वा बिन वर्द भी आपके कबीले आपसे से ताल्लुक रखते हैं। तो दोनों की सिमिलरिटीज इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। उर्वा कौन है? एक चोर शायर है, और चोर शुआराओं में से, सालिक शुआरा में से सबसे बेहतर शायर है। अंतरा कौन है? मुअल्लकात अशर वालों में से है। व शाइर मिन अबरज़ शुआरा यंतमी शाइरान इला कबीलत अब्स, और दोनों के दोनों ही कबीले अब्स से ताल्लुक रखते हैं, और दोनों के दोनों ही आपके जो है फुरसान अरब से हैं, यानी बहादुर लोगों में से और घुड़सवार लोगों में से हैं अरब के। ठीक है, इसी तरीके से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, क़ाला मुआविया बिन अबी सुफियान लौ कान लिउरबता इब्न अल-वर्द वलदुन अहबब्तु अन अतज़व्वज इलैहिम, अगर उर्वा की कोई औलाद होती तो मैं उनसे शादी जरूर करता। ठीक है, उर्वा की कोई बेटी होती तो मैं उससे निकाह कर लेता, ताकि मेरा इससे रिश्ता बन जाए। अच्छे लोगों से रिश्ता बनाना, अच्छे लोगों से, ठीक है, मुसाहरत करना, ये उसकी कुछ सोच थी मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो उन्होंने ये बात कही। ये बात याद रखें, जुमले अक़वाल को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप में से, इससे पहले भी बहुत सारे जुमले आए हैं, अगर कोई एक बंदा चाहे आप में से, या सब चाहे, कोई भी चाहे, अगर आप चाहो कि अक़वाल को जमा कर लो तो कर सकते हो। अक़वाल के लिए 10-5 पेज अपना इकट्ठा कर लो, 10-5 पेज खाली छोड़ के, और जितने भी अक़वाल आएंगे यहाँ पे, अब तक हमने जितने अक़वाल पढ़े, इम्रुल कैस के बारे में, अंतरा के बारे में, ज़ुहैर के बारे में, उनको एक जगह पर लिख लो। तमाम को, यानी पूरे सिलेबस के अक़वाल को अगर कोई जमा करना चाहे तो कर सकता है। ये उसकी खिदमत होगी और उसके लिए भी बेहतर होगा। और आगे भी अगर आप हमें दे देंगे तो हम PDF वगैरह बना के उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम आप में से कोई कर सकता है, बहुत फायदा होगा आपके लिए भी, आपकी तैयारी में भी आसानी होगी। क्योंकि हमने देखा बच्चे शिकायत करते हैं, इतने अक़वाल हैं, कैसे याद किए जाए, क्या करें। तो अक़वाल याद करना ये कोई मुसीबत और परेशानी की बात नहीं होती है। ठीक, इनमें बस जो भी चीज याद करने की है आप उसमें रिवीजन करें, इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगी। फिर उसके बाद हुतैया ने फी जवाब ही अला सवाल उमर बिन खत्ताब, एक मरतबा उमर बिन खत्ताब ने इनसे सवाल किया, इंशाल्लाह, बट इट विल टेक सम टाइम। हाँ, टाइम तो लगेगा, लिखने में सब में टाइम लगेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया हुतैया से, कैफा कानत हुरूबुकुम, तुम्हारी जंगें कैसी हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा, कुन्ना नअतमु फिल हुरूब फिल हर्ब बिशअरिही। ठीक है, हुतैया के बारे में क्या कहा? तो हुतैया ने फरमाया कि हम उर्वा के शेर के जरिया जंगों में एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, या उनको हौसला दिलाते थे। मतलब कोई जख्म लग गया किसी को, या कोई परेशानी हो गई, उसका भाई खत्म हो गया, तो हम उसको मोटिवेट किया करते थे, एक दूसरे को जोश दिलाते थे। या इसी तरीके से हम एक दूसरे की ताज़ियत किया करते थे। इस मीनिंग में भी आतिमा आतमों को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद करेंगे, किसने फरमाई थी? हुतैया ने। इसके बारे में कि इनके शेर के जरिए जंगों में हम एक दूसरे की हौसला अफजाई किया करते थे, या एक दूसरे को दिलासा देते थे, सही माने में दिलासा देते थे। ये वाला याद करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जुमला भी याद करें। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने कहा, मन काला इन्ना हातिमन असमहन नास, अगर कोई कहेगा कि हातिम जो है वो सबसे ज्यादा सखी इंसान है, सबसे ज्यादा सखावत करने वाले हैं, सबसे ज्यादा माफ करने वाले हैं, फकद ज़लम उर्वा बिन वर्द, तो उसने उर्वा बिन वर्द पर जुल्म किया है। तो किसने कहा? मुआविया ने एक जुमला कहा, मुआविया बिन अबी सुफियान ने। फिर उसके बाद हुतैया ने एक जुमला कहा। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने जुमला किया है। ठीक है, बाकी इसका तज़किरा तो मैंने कहा था कि अगानी में इनके बारे में आया, काना उर्वा बिन वर्द, जब लोगों को इज़ा अज़ाबतिन नास सिनी शदीदा, जब लोग परेशानी में हुआ करते थे, तरकू फी दारिहिल मरीज़ वल कबीर वद दईफ, व काना उर्वा बिन वर्द यजमा अशबाह औला मिन दून नास मिन अशीरतिही फी शिद्दति सुम्मा यहफिर लहुम अलअसराब व यकनफु अलैहिम अलकनफ व यक्सिबुहुम। चुनांचे किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती, लोग परेशानी में होते, कहत साली उन पर आती, कोई बीमार हो जाता, कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता, तो तमाम लोगों को जमा करते थे और उनकी परेशानियों को हल किया करते थे। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज कराना, अगर किसी के पास खाना नहीं है तो उसको खाना देना, ये काम किया करते थे उर्वा, जिसकी वजह से मैं इनको सालीक में से, बल्कि क्या सालीक में बहुत सारे लोगों में पसंद करता हूँ। और अब्दुल मलिक इब्न मरवान का जुमला भी देख सकते हो, हातिम के पास अल्लाह ने माल दिया था,
تب وہ اپنا مال خرچہ کرتا تھا. لیکن ان کی جز دیکھیں, غریبوں کی مدد کرنے کی جو سوچ, جو اندر آگ تھی, گرچہ میرے پاس مال نہیں ہے لیکن ان مالداروں سے چھین کے ان کی مدد کروں گا میں. سمجھ رہے ہیں سوچ دیکھ رہے ہیں. گرچہ آج کے ٹائم پہ کہے کوئی کہے میں چوری کر کے میں غریبوں کا بھلا کروں گا, تو شریعت کی نگاہ سے اس کو منع کر دیا جائے گا, بھائی صاحب اتنی بھلائی مت کرو آپ. وکان عروہ ذا شخصیت فریدہ, ٹھیک ہے, ایک یکتائے روزگار شخصیت تھی, دلاسا دیا کرتے تھے نجم الحق, دلاسا دیا کرتے تھے. کانا عروہ ذا شخصیت فریدہ, چنانچہ ایک یکتائے روزگار شخصیت تھی. تخت شخصیتہ کشاعر و فارس, چنانچہ ان کی شخصیت نے جو نمودار ہوتی ہے وہ ایک شاعر کی طرح, ایک فارس کی طرح. فکانت دعوتہ الی السالک سبیلہ لاقامۃ نوع من العدالہ اجتماعیہ. یہ جو چوری کی طرف خود گئے, یا چوری کی طرف ہو سکتا ہے کسی نے انہیں بلایا بھی ہو, ان کا مقصد کیا تھا؟ ایک سوشل جسٹس کو قائم کرنا تھا, ایک سماجی نیائے اور سماجی انصاف کو قائم کرنا تھا, کہ سماج میں کچھ لوگ مالدار ہیں, وہ اپنا بڑھتے جا رہے ہیں, غریبوں کا کوئی دیکھ نہیں رہا, یہ منبوذین, یہ فقراء, یہ مساکین, یہ محتاج, کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا. ان کا کون پالے گا ان کو, ٹھیک ہے, کون پالے گا ان کو. پھر اس کے بعد من اشہر قصائدہ قصیدۃ لہ موجودۃ فی دیوان الاسمعیات, پھر میں نے بتایا تھا ان کا بھی ایک مشہور قصیدہ ہے جو کہ اسمعیات میں موجود ہے. کہاں پر موجود ہے؟ اسمعیات میں موجود ہے. تو اب اچھے سے لکھ لینا, تعبت شرہ کا مفضلیات میں موجود ہے, ٹھیک ہے, یعنی مفضلیہ ہے, مفضلیات میں موجود ہے. دوسرا شنفرہ کا لامیۃ العرب ہے, مشہور ہے. تیسرا آپ کا اسمعیات میں ان کا قصیدہ ہے, یہ دیکھ لینا. اس کے بیت اور میں بہر دیکھ کے نہیں آیا لیکن آپ دیکھ لینا. تو مفضلیات میں اس کے بہر کتنے ہیں؟ 26. لامیۃ العرب کے کتنے بہر ہیں؟ 68. مفضلیہ کا جو آپ کا بیت ہے, جو بہر ہے, وہ آپ کا بہر بسیط ہے. کیا بول رہا ہوں میں, کتنے عدد میں ہے؟ 26 میں, اور یہ کتنے میں؟ 68 میں, اور یہ آپ کا بہر بسیط میں ہے, اور لامیۃ العرب جو ہے آپ کا بہر طویل میں ہے. لامیۃ العرب جو ہے آپ کا بہر طویل میں ہے. باقی اسمعیات کا میں دیکھ کے نہیں آیا, اگر میں دیکھوں گا انشاءاللہ گروپ پہ شیئر کر دوں گا. آپ میں سے بھی کوئی اچھے سے دیکھ لینا کہ جو اسمعیات میں ان کا قصیدہ ہے, جس کا عربہ بن ورد کا, اس میں کتنا ہے, اور اسی طریقے سے کون سے بحر پر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ان کا جو مطلب شروع ہوتا ہے, اقلی علی اللوم یا ابنۃ منذری, اے میری بیوی کم ملامت کرو ہم پہ, ونامی فإن لم تشتہی النوم فسحری, سو جاؤ اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو جاگو, کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو. کیسے پریشان کرتی تھی, ابھی دیکھو آپ کیسے ان کی بیوی پریشان کرتی تھی. اور سوال ان کی بیوی کے متعلق آلریڈی آ چکا ہے, یہ والا بھی بیت پوچھا جا چکا ہے. دیکھیں یہ والا جو بیت جو اوپر ہے نا, جس کو ہم نے ابھی پڑھا, یہ بھی آپ کا پوچھا جا چکا ہے. تو ان کی بیوی ہوا کرتی تھی کون؟ سلمہ الغفاریہ. ان کی بیوی کے متعلق سوال پوچھا جا چکا ہے بھائی صاحب. تو ان کی بیوی ہوا کرتی تھی سلمہ غفاریہ, وہی امرات من بنی کنانہ, یہ بنی کنانہ کی ایک عورت ہے جن کو ام وہب کہا جاتا تھا. یہ سوال پوچھا گیا تھا شاید کہ ان کی بیوی کی کنیت کیا تھی, ایسا کوئی سوال پوچھا گیا. ٹھیک ہے, وہی امرات اصابہا عروہ حین غار اہلہا. ٹھیک ہے, چنانچہ عروہ نے ان کو قید میں لے کر آئے تھے, یہ ان کی باندھی تھی, ان کی قید میں تھی, پھر اس کے بعد ان سے شادی کر لی تھی. کان سلمہ الغفاریہ بکرن, یہ نوجوان تھی, چاہتی تھی کہ میرے پاس رہیں. فعاتقہا عروہ, چنانچہ عروہ نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. وکانت راغبۃ بہ ایضاً, اور سلمہ غفاریہ بھی چاہتی تھی کہ عروہ سے شادی ہو جائے. فعاش معہا ما یزید علی 10 سنین, تقریباً 10 سال تک دونوں ساتھ رہے. ان کا ایک بیٹا بھی ہوا. اور سلمہ کا عروہ کے اشعار میں بھی تذکرہ آیا ہے. سلمہ جو ام وہب ان کی کنیت ہے, سلمہ غفاریہ کا, ان کا تذکرہ عروہ کے اشعار میں بھی آیا ہے. یہاں تک کہ کیسے آیا ہے کہ ام سلمہ, یہ جو سلمہ ہے, ام سلمہ نہیں بلکہ سلمہ جو ہیں, یہ اپنے شوہر پر ملامت کیا کرتی تھی, اپنے شوہر پر ملامت کیا کرتی تھی جو عروہ کیا کرتے تھے. فإنه يعرض نفسه للخطر والموت في سبيل الفقراء, یار تم ان غریبوں کے لیے اپنی جان زوخم میں ڈالتے ہو, اپنے آپ کو پریشان میں ڈالتے ہو. یہ کیا مسئلہ ہے ان کا, تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ شوہر نامدار, اب بیوی کے لیے, شوہر کے لیے تو یہ سمجھ رہے ہیں, یہ کیئر ہونا تو ضروری ہے, ہر کہیں پہ آئے گی. ٹھیک ہے, ہم بھی کبھی کبھی کچھ کام کرتے تو ہمارے گھر والے, بیوی نہیں ہے گھر والے, ٹھیک ہے, وہ ایسا کام کرتے ہیں, کیوں کرتے ہو, کیوں پریشان ہو رہے ہو, کیوں لوگوں کی گالیاں سن رہے ہو, کیوں لوگوں سے برا بھلا سن رہے ہو. تو ایسا ہوتا ہے. فیرد عروہ بن ورد علی زوجته التي لامته على افعاله قائلا, تم مجھے ملامت کر رہی ہو. تو عروہ ان کو جواب دیا کرتے تھے, اقلی علی اللوم یا بنت منذری, اے بنت منذر, اے سلمہ غفاریہ ام وہب, کم ملامت کرو. ونامی, سو جاؤ, سو جاؤ, میں رات میں جاتا ہوں, تم سو جاؤ, کیوں جاگتی رہتی ہو, میری کیئر کرتی ہو. اب آئیں گے 4 بجے آئیں گے, 3 بجے آئیں گے, 2 بجے آئیں گے, ٹھیک ہے, سو جاؤ. نہیں نیند آ رہی تو جاگو. زرینی ونفسی ام حسان, اے ام حسان چھوڑ دو مجھے. اننی بها قبل ان املک البیع مشتری, احادیث تبقى والفتى غیر خالد اذا هو امسى هامة فوق سیری. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں.
फिर इसी तरीके से उर्वा की खुसूसियत क्या है, बिअन्नहु अत्फा अला सालिकति नौअम मिनल इहतराम व तक़दीर, कि चोरी के बारे में इन्होंने एक इज्जत की थॉट दे दी कि चोरी भी अच्छे मकसद के लिए की जा सकती है। फहुवा ला यग़ज़ू लिन्नहब वस्सल्ब, तो सिर्फ लूटने के लिए चोरी नहीं करते थे दूसरे शुआरा की तरह, शनफरा की तरह, ताबत शर्रा की तरह, बल्कि वो चोरी किया करते थे ताकि फकीरों की मदद करें, कमजोरी की मदद करें, यहां तक कि इनको अबुल फुकरा कहा गया और अबुल मसाकीन कहा गया। ये थी जिंदगी उर्वा बिन वर्द के बारे में। जी, किसी ने बताया अस्माइयात जो है वो बहरे तवील में है, यानी अस्माइयात में जो इनका ये कसीदा मौजूद है, किसका, उर्वा बिन वर्द का, ये आपका बहरे तवील में है और 27 कसीदे पर मुश्तमिल है। बहरे तवील में है और 27 बैत पर मुश्तमिल है ये कसीदा इनका जो अस्माइयात में है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। और मैं कहूंगा कि ये तीनों इंफॉर्मेशन यानी मुफज्जलिया, लामियतुल अरब, अदद और बहर के साथ कोई कमेंट में लिख देना, कमेंट में नहीं बल्कि वहां पर जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप का डिस्कशन का, वहां पे लिख देना। यानी मुफज्जलियत ताबत शर्रा, बहर बैत, लामियतुल अरब बहर बैत, इसी तरीके से अस्माइया में जो इनका उर्वा बिन वर्द का है वहां पे बहर और बैत, ये तीन काम ये कोई कर देना प्लीज, दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाएगा मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि सारे रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, वो हम जानते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, अभी रिजल्ट आया तो हमें निकालना है JRF, अब JRF के बाद वो लग जाते हैं अपने कामों में, ठीक है, अपने कामों में लग जाते हैं, कभी एक टाइम नहीं निकालते, पढ़ाई नहीं करते। तो जिसको भी JRF निकालना है अल्लाह के वास्ते मेहनत करिएगा, ये ऐसे नहीं निकलता है JRF, ठीक है। तो उर्वा बिन वर्द की जिंदगी काफी साफ है। जो अक़वाल याद करेंगे, मुआविया बिन सफियान का कौल याद करेंगे, इन्होंने फरमाया कि अगर उर्वा की बेटी होती मैं उनसे शादी कर लेता। फिर हुतैया का कौल याद करेंगे कि जंगों में हम एक दूसरे को दिलासा देते थे या मोटिवेट करते थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान का कौल याद करेंगे कि जिसने हातिम को सब लोगों में सबसे ज्यादा सखी बना लिया वो जो है उसने जुल्म किया है। बाकी उर्वा की जिंदगी जो शख्सियत है, इनको अमीरुस सालिक कहा जाता है, इनको इसी तरीके से उर्वतुस सालिक कहा जाता है, इनको अबुल मसाकिन कहा जाता है, अबुल फुकरा इनको कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। चोरी को जिन्होंने इख्तियार किया था वो शनफरा और ताबत शर्रा की तरह इख्तियार नहीं किया था, ये आपके नजद में पैदा हुए, गरचे कहीं स्लाइड में नहीं आया लेकिन नजद में पैदा हुए, जो मैंने बार बार आपको बताया था। नजद में पैदा हुए, कहां पर, नजद में। कुछ चीजें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो शुरुआत में भी मैंने बताई थी, थोड़ी चीजें रिपीट कर देता हूं। वो क्या होगा, आप इन तीनों को देखो, आप क्या इन तीनों को देखो, किस तीनों को हम देखते हैं, शनफरा, ताबत शर्रा, शनफरा और इसी तरीके से यहां पर देखें ताबत शर्रा, शनफरा, उर्वा, ठीक है। ताबत शर्रा 535 में वफात, शनफरा 525 में वफात, उर्वा जो है आपका 596 में वफात। कबीला का देख लें, ताबत शर्रा कबीले फहम से, कबीले अज़द से, उर्वा जो हैं आपके कबीले अब्स से, ताबत शर्रा जो हैं आपके तहामा से ताल्लुक रखते हैं, तहामा से, शनफरा यमन से ताल्लुक रखते हैं, इसी तरीके से उर्वा जो हैं आपके नजद से ताल्लुक रखते हैं। ये तीन चीजें अच्छी रहेंगी। आकिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आकिफ ने जो बताया कि अस्माइया जो है बहरे तवील में 27 में है। शरह किसने की, हाँ, बाकी उसके बाद शरह वाला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मुफज्जलियात की जो शरह हमने देखी, तो मुफज्जलियात की शरह 3 लोगों ने की थी। एक उनमें से आपका यहाँ पर खतीब तबरेजी आएंगे, नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर तीनों का लिख देंगे फिर से ताकि ये वाला भी आप याद कर लेना। पहले लामियतुल अरब की देखो, पहले किसकी देखो, लामियतुल अरब की। तो लामियतुल अरब में 3 लोगों का नाम आया, मुबर्रिद का, दूसरा खतीब तबरेजी का, तीसरा आया ज़मख़शरी जारुल्लाह का। ये हुआ लामियतुल अरब का जो है शनफरा का, ठीक है। ये एक चीज ये नोट बना ले थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो मुफज्जलिया ताबत शर्रा का जो मुफज्जलिया है उसकी किसने की, नंबर 1 खतीब तबरेजी ने, ठीक है। दूसरे नंबर पर इब्नुल अंबारी ने, और तीसरे नंबर पर आपका मरज़ूकी ने, ठीक है, तीसरे नंबर आपका मरज़ूकी ने। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और इसको नोट में बना सकते हैं। क्लियर है जी, बताएं कोई क्वेश्चन है आप? मैंने नहीं सोचा था इतना लंबा टाइम लगेगा, इतना ज्यादा जाएंगे हम सालिक में, खर्चे 3 थे लेकिन इतना लंबा नहीं सोचा था। मैं सोच रहा था काफी पहले हो जाएगा और क्वेश्चन वगैरह आप लोग पूछ सकते हो जी। قرأت في مكان أن المفضل الزبي أيضا شرح
قصيدة اللامية. لا أدري، يمكن أن يكون المفضل الضبي شرح هذه القصيدة ولكن لم أقرأها الآن، وهذا إفادة مهمة من فضلك بأنها قالت بأن المفضل الضبي أيضا شرح لامية العرب. اوكي، تو 4 لوگ ہو جائیں گے اگر ان کی بات صحیح ہے. جی لكن نسيت المكان. أنا لا حفظت فقط. اوكي نحن نبحث إن شاء الله، والأصدقاء الآخرون هم أيضا يبحثون في هذه المسألة إن شاء الله. سؤال آخر؟ لا ليس لدي أي سؤال. اوكي شکرا. میرے کو بولا بھی نہیں ہے. جی کچھ اور؟ چلیں پھر. سر معلقہ عنترہ بن شداد کا جو معلقہ ہے اور داہس الغبرہ سے اس کا کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے معلقہ سے اور حرب داہس الغبرہ؟ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سر ایک پی ڈی ایف میں داہس الغبرہ کی پڑھ رہا تھا تو اس کی ساری تفصیلات تو ان میں ایک یہ آیا ہے کہ عنترہ بن شداد نے اپنے معلقہ کو لکھا جو ہے حرب داہس الغبرہ علی عقابی حرب داہس الغبرہ، اس طرح لکھا ہے. سر اس کی اسکرین شاٹ میں بھیج دوں آپ تو آپ نے بھیجی تھی شاید. تو مطلب جی اگر کچھ ہے بھی نا وہ ایک ڈیٹ بتا رہے ہیں، ایک زمانہ بتا رہے ہیں، بس یہ تھوڑی بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھا. عقاب مطلب اس کے بعد میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں. تو وہ ٹائمنگ اچھا بتا رہے ہیں کہ داہس الغبرہ کے جنگ کے بعد جو ہے ایسی ٹائمنگ پہ لکھا ہے. تو اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے. داہس الغبرہ سے اگر کسی معلقے کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہو، بہت اچھے سے جانتے ہو کس کا تعلق ہے. جی زہیر بن ابی سلمان. ہاں تو وہ عقاب مطلب بعد ٹائمنگ بتانے کا مقصد ہوگا کہیں پر وہ. جی اور وہ عنترہ بن شداد کسی جنگ میں مارے گئے تھے کیا؟ ہاں عنترہ بن شداد جو ہے کسی ایک جنگ میں مارے گئے تھے. قبیلہ طے کے ساتھ کوئی جنگ تھی، قبیلہ طے کے ساتھ، وہاں پر ان کو مارا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ڈیٹیل میں پڑھتے رہے، ڈیٹیل بہت ہوتی ہے. لیکن میں نے بولا نا کہ کوئی کوشچن اس بار بھی صرف 2 کوشچن ایسے تھے جو ہمارے نوٹ سے باہر تھے. ٹھیک ہے، کل 2 کوشچن، اور وہ 2 کوشچن ایسے تھے کہ کسی کے بھی نوٹ سے باہر ہوں گے. ایون بڑی بڑی کتابیں پڑھو گے تب بھی بڑی مشکل سے ملے گا، کیونکہ آج کل یہ اساتذہ وغیرہ بھی نا نئے بندوں کے بارے میں یہاں جا رہے ہیں، عصر حدیث کے بندوں کے بارے میں نیٹ کھولتے ہیں، وہاں سے سوال بنا دیتے ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے. جی سر، اسی سے جڑا میرا بھی کوشچن ہے سر. ہم بکس وغیرہ تو پڑھتے رہتے ہیں سر، ڈیٹ کی بہت کنفیوژن ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ 2 3 3 4 4 ہوتی ہیں. کون سی کوئی ایسی بک ہے جس سے ہم پڑھیں اور وہ اس کو ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ 3 یا 4 ڈیٹس دی ہوئی ہیں وفات کے تعلق سے. کوئی بھی اب نہیں ہم ہے ایسی، کوئی بھی ایسی نہیں ہے. چیلنج تو کسی وجہ سے بھی کر سکتے ہو، چیلنج کسی سے بھی کر سکتے ہو، لیکن کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہہ سکو یہی صحیح ہے. میں نے شروعات میں ہی جملہ بولا تھا، حسن زیات مجھے سب سے بیٹر لگی ہے، ابھی تک سب سے بیٹر حسن زیات لگی ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس میں تاریخ کے باب میں NT کے سامنے بھی دے سکتے ہیں ہم، NT والے سے چیلنج کریں تو پھر ہو سکتا ہے اس پہ. ہاں جی کیا بولا آپ نے؟ مطلب NTA والوں کو ہم بتا سکتے ہیں چیلنج کے طور پہ اگر جی چیلنج کے طور پہ بتا سکتے ہیں، نو پرابلم. پہلی ڈیٹ کے بارے میں اب ڈیٹ اتنا نہیں پوچھ رہے. ٹھیک ہے، ڈیٹ کا مزاج اب گیا، ڈیٹ کم ہو رہی ہے، وہ ترتیب والا ڈیٹ ڈال دیتے ہیں. ترتیب پوچھتے ہیں نا، ترتیب وہ ڈیٹ نہیں پوچھتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جی سر کبھی ترتیب پوچھتے ہیں آگے پیچھے کرنے کا، وہ ڈیٹ پوچھتے ہیں. تو ڈیٹ ڈائریکٹلی نہیں پوچھتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیٹ پوچھی بھی جاتی ہے تو کسی سے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، ڈیٹ کسی سے بھی پڑھ جا سکتے ہو. ایک میں نے بتایا، یعنی کسی سے بھی چیلنج کر سکتے ہو آپ، حنا فاخوری سے بھی چیلنج کر سکتے ہو، عمر فاروق سے بھی چیلنج کر سکتے ہو، کسی سے بھی کر سکتے ہو. ایک اور بات میں نے بتائی کہ حسن زیات میری نظر میں سب سے بیسٹ ہے تاریخ کے حساب سے، میں نے اسی پہ ہی پورا اعتماد کیا جہاں پہ بھی مل سکتی ہے. دوسرا یہ ہے عصر حدیث میں تو اتنا اختلاف نہیں ہے، یہ پہلے والوں میں اکثر اختلاف ہے، نہ محجر میں اختلاف ہے، نہ عصر حدیث میں اختلاف ہے، نہ نقاد فی العصر الحدیث میں اختلاف ہے. یہاں پر ہی جو کچھ اختلاف ہے وہ ہے. تو جو یہ اختلاف ہے آپ دیکھو کہ کون سی ڈیٹ زیادہ بیان کی گئی ہے، کون سی ڈیٹ زیادہ بیان کی گئی ہے. جیسے کل ہی ہم پڑھیں گے جریر کے بارے میں، اور اسی طریقے سے فرزدق کے بارے میں. تو میں بتاؤں گا کہ 110 بھی موجود ہے، 114 بھی موجود ہے بڑی بڑی کتابوں میں، اور 114 سے بھی کوشچن آ چکے ہیں، 110 سے بھی کوشچن آ چکے ہیں. کل ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ کل کو. تو میں نے کیا بولا، حسن زیات کو بیسٹ مان سکتے ہو. پھر آپ پاؤ گے کہ جو الگ مانا 60 ہے، 70 ہے، کہیں پر کچھ ہے. جیسے ابھی اس کو دیکھو کہ ہم نے امرؤ القیس کا کیا پڑھا، 545 540 اور 545.
اور 560 بھی ہے, تو 560 کو میں نے ختم کر دیا کیونکہ بہت دور کی کوڑی ہے وہ, اس کو کیا سمجھوگے. تو 543, 540 اور 545 امرؤ القیس کی وفات کے بارے میں دونوں یاد کر لیے, لیکن میں نے بولا 543 میری نظر میں راجح ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں حسن زیات میں بھی موجود ہے ایسا. تو جو قول زیادہ مل جائے کہیں پر اس کو آپ سمجھنے لگو کہ زیادہ بہتر ہے, کئی جگہوں پر مل گیا, یہ کئی کتابوں میں یہ مل گیا, سمجھ رہے, یہی تو تحقیق کرنا ہوتی ہے ہمیں. جی سر, ٹھیک ہے. کتاب لکھنے والے کہیں یہی کرتے ہیں کبھی کبھی. تو یہاں پر صدام حسین نے لکھا ہے کہ اسماعیات جو ہے 27 میں نہیں ہے بلکہ 72 میں ہے. جی عاقف آپ نے کیا کیا تھا, چلیں کوئی نہیں, بحث کر کے یہی مطلب ڈیٹیل کر کے آپ دیکھ لیجئے گا, ڈھونڈ کے گروپ میں لکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. صدام حسین جو یہاں پر لکھا ہے اب وہاں پر لکھ دینا اگر یہی صحیح ہے تو. شکرن جزیلا, جزاکم اللہ خیر, وہاں سے جزا, بارک اللہ فیکم. جڑنے کے لیے محنت کرتے رہیے, محنت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. محنت کا دامن چھوڑو گے تو جی آر ایف آپ سے بہت دور بھاگ جائے گا بھائی صاحب. محنت کرنا پڑے گی کیونکہ جی آر ایف کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جاب کرنے والے آج تک رو رہے ہیں, پتہ نہیں کب تک میں روتا ہوا ان کو دیکھوں گا. اور سمپل سا ان کا جواب ہوتا ہے, بھائی صاحب ہم جاب کر رہے تھے, ہمارے اتنے اچھے نمبر نہیں آئے, 3 سال سے تیاری کر رہے ہیں, میرے ساتھ سے تیاری کر رہے ہیں, 27 ہی ہیں شیخ. مقیم الاسلام نے فرمایا 27 ہی ہیں شیخ. دیکھیں یہ آپ ان کی لڑائی کی بات کر رہے ہو, یہاں پہ لوگ لڑنے لگے. تو کوئی نہیں, آپ دیکھ لیں, وہاں پر دیکھ لیں, کلیئر کر دیجیے گا. تو محنت کرتی رہے گا. پیپر 2 کو, پیپر 1 کو اگنور نہیں کرنا ہے. کریش کورس لے لیجیے گا. ہمارے ایک ٹیچر بولا کرتے تھے مدرسے والوں کو کریش کورس لے لینا چاہیے, ان کی انگلش وغیرہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے, میتھ اچھا نہیں ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہوتی, کنسیپٹ اتنے کلیئر نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے آپ ان کو پیپر 1 کا کریش کورس لے لیں. نظم الحق آپ کیا کہہ رہے ہو سر, ریکارڈ ویڈیوز یونٹ وائز اپلوڈ کر دیا کریں. کر تو